ایک منٹ ٹھہرے، آپ بولتے ٹھہر جائیں، آپ بولتے ہیں ٹھہر 10 جائیں نا، ایک منٹ منٹ، ایک میں منٹ، بولتا ہوں ایک 2 منٹ منٹ آپ جواب لے ہی بھائی، نہیں پاتے اس سوال بھائی کا. آپ ایسا جملہ بولتے ہیں جس پر ہمیں کنسرن ہوتا ہے. اب آپ نے شک دیکھیں، پہلی بات یہ ہے آپ کی آنےسٹی اس چیز میں ہے کہ آپ آنےسٹ بات کریں، اس پر کھڑے ہوں. یہی میں کروں گا، یہ نہ کریں او ہو ہے ہاں ہی نہ. دیکھیں ہم ابھی پچھلے 3-4 گھنٹوں سے آپ سے بات ہو رہی ہے یار، اس کا کم از کم اس کا آپ کو کم از کم اخلاقی طور پر ہمارے ساتھ مخلص تو ہونا چاہیے. ہم کوئی پیسے لے رہے ہیں آپ سے یا ہمیں کوئی پے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم دھوکہ نہ دیں، یہ کام نہ کریں، آنےسٹ رہیں، جو آپ کے دل میں ہے وہ کریں، اور جہاں آپ کمزور ہیں مانیں. یہ ہو بھی سکتا ہے، اچھا یہ نہیں مطلب بھی کہ ہو میں سکتا. تو آپ بھی مانے نا اس جہاں کو پہ آپ یقین، کمزور ہیں، آپ بھی مانے نا کہ ہاں ہم میں قاصر ہیں مانوں گا. جواب دینے سے، آپ بھی مجھے مانے نا. میں دیکھیں میں آپ کو کمزور ثابت کروں گا، آپ بھی ثابت کریں، میں آپ کی بات سے تھوڑی کمزور ہو تو جاؤں آپ گا. نے جواب تو ایک نہیں میں دیا، تو میں آپ ثابت کو کہاں میں سے کمزور ثابت او کروں؟ آپ بھائی جواب پہلے دیں گے تو آپ کمزور کی ثابت کروں گا. میری بات تو ہونی ہے، ابھی آپ کی تو ہو لے. آپ نے جو کہا ہے قرآن پر آپ کو یقین ہے کہ قرآن میں تبدیلی ہو چکی ہے، یہ یقین ہے، دلیل آپ کی شک ہے. کیوں دلیل یہی ہے کہ جو میں نے آپ نے بتا دی ہے، نماز کی، ہاں وہ حج کے شک ہے آپ مہینے کو، کی، یا نہ نہیں کلمہ وہ ہے، نہ شک ہے. اذان ہے، نہ کچھ ہے. اب یہ آپ مجھے چیزیں یہ کدھر بتائیں، ہیں نہیں نہیں بیساکھی نہیں کی؟ نہیں اس نہیں میں کیا ہوتا ہے، میں اس نے میں کیا ہوتا ہے، آپ کو جواب دینے کے لیے نا، اس میں علی جو سوال صاحب میں نے بات کیے ہیں سنیں، بچوں کا آپ کھیل کو، نہیں نہیں ہے، میری بات کمپلیٹ ہونے بچوں دیں. کا نہیں نہیں کھیل نہیں 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 ہے، بات نہیں بات نہیں کمپلیٹ نہیں 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 ہونے نہیں دینی نہیں نا، وجہ بات ہے. بات سنیں کمپلیٹ ہونے آپ دینا. دلیل آپ کے پاس جواب سنیں نہیں نا، ہے، آپ بات جواب کو نہیں، کسی اور طرف لے کے آپ کے جائیں پاس گے. دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، آپ اپنی دلیل دلیل کے پر اوپر آتے ہیں، دلیل کے اوپر آتے ہیں، مجھے ایک بات کلیئر کرنے دیں. دلیل کے اوپر آتے ہیں، آپ پھر آتے ہیں دلیل آپ کے کو اوپر. سمجھ آ رہی ہے میں میں بات کیا یہ کر رہا کہہ ہوں؟ رہا ہوں، آپ کو میں سمجھ آ رہی ہے بالکل بات کیا کر رہا ہوں؟ بالکل آپ اچھے طریقے سے دہرائیں، میں سمجھ آ رہی آپ ہے. دہرائیں، آپ صرف ایک منٹ، جلیبیاں تل رہے ہیں، جلیبیاں تل نہیں رہے ہیں آپ کی. میرے بھائی آپ آپ کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ تو بالکل مجھے ابھی آئیڈیا آپ ہے. آگے جلیبیاں آپ تلنے پر. ایک چیز پہ آپ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ایک چیز اڑ کے بیٹھ یار جاتے مجھے ہیں، یہ بتائیں، مجھے یہ ایک چیز بتائیں سے کہ آگے میں نے آپ سے چلتے ہی پوچھا نہیں کیا آپ. ہے، میں نے آپ سے پوچھا کیا ہے، یہ اچھا بتا مطلب دیں کہ مجھے. آپ مجھ سے 50 سوال پوچھیں، میں اس کا جواب دوں. میں ایک پوچھوں، آپ اس کا جواب نہیں دیں گے، مطلب وہ تو پھر کیا فائدہ ہوا بات کرنے کا؟ جب آپ بات جواب ہی سنیں، نہیں دیں گے تو پھر بات بات کرنے سنیں، کا کیا فائدہ ہے؟ بات سنیں، 2 گھنٹے ہو بات گئے ہیں، سنیں. صرف سوال ہی ہو رہے ہیں، سوال ہی ہو رہے ہیں، جواب تو ایک نہیں دیا آپ لوگوں نے. ہاں نہ جی، حدیث کے اس اوپر آپ لیے نے جواب دیا، نہ قرآن کے اوپر ہاں. آپ نے جواب دیا. اچھا بس دو چلو، گھنٹے سے اچھا مجھے دیکھ چلیں، رہے ہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ یہی کس چین کا مالک ہے، یہی یہ آپ کو، محمد شیخ کو فالو کرتا ہے. یہی آپ کو، اب آپ کو پتہ کیا ہو رہا ہے، اب آپ بھاگ رہے ہیں کیونکہ میں نے میں ایک جگہ بھاگ پر کبھی آپ بھی کو نہیں کھڑا سکتا، کر، تو سوال ہی پھر پیدا چپ نہیں، کر جائیں نا، سوال ہی پھر پیدا چپ نہیں ہوتے. کریں، جو بات ہے اس پر نہیں کھڑے میرے ہوں. بات کا جواب دیں گے نا، میں نہیں میرے بات مجھے کا جواب دیں بتائیں، گے تو نہیں بات کا جواب ون بائی کیسے ون دوں جب ون آپ بائی ایک ون چلیں یقین گے کے کہ آپ دلیل. صرف باتیں کریں گے؟ ون بائی یار ون چلیں بات گے سنیں صرف نا، آپ باتیں کریں جواب گے؟ تو دیں، جواب تو دیں. کس یقین چیز کی کا جواب دلیل، دوں؟ شک سنیں نا، آپ سب معاملہ خراب کر رہے ہیں، دلیل اس سے یہی ہے کہ فائدہ اس نہیں ہو میں رہا. یہ چیز نہیں ہے. سب سے بڑی دلیل اچھا یہی ہے کہ اس میں یہ یہ چیز نہیں ہے. نہیں ہے، نکالی گئی ہے یا تھی نہیں شروع سے، اچھا یا نکالی نکالی گئی کہ ہے، یہ تھی، اب بات کو یہ کیا ہے؟ یہ تو جلیبی تلنے تو والی یہ بات ہے، پتہ سمپل کرنا ہے سی نا بات ہے. مجھے، آپ یہ پتہ نہیں کرنا ہے، نہیں یا نہیں تو نہیں. آپ نہ دیکھیں. ملک صاحب اچھا نہیں نہیں، ایک منٹ میں ٹھہریں، بولوں گا. نہیں نہیں میری علی بات سنیں، صاحب میں بولوں گا. نہیں، علی اچھا میری صاحب بات بات سنیں. سنیں. مجھے یہ کیا پتا ہے آپ کہاں پہ بچکانا پن ہے، پکڑنا یہ چاہ رہے کیا ہیں. بچکانا پن ہے مجھے کہ پتا ہے قرآن آپ میں کہاں پہ تبدیلی پکڑنا چاہ ہوئی رہے ہیں. ہے، مجھے یقین مجھ ہے، لیکن کیسے مجھے ہوئی ہے پتا یہ ہے مجھے نہیں پتا. آپ کہاں پہ پکڑنا چاہ رہے ہیں، مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے. تو سمجھے، سر میں بچہ پکڑنا نہیں ہوں. کیوں چاہ آپ رہے ہیں، جلیبی پکڑنا. آپ جلیبی تل تل کے نا مجھ سے بس چلو یہی ٹھیک ہے، اگلوانا چاہتے ہیں. اگر میری بات اچھا سنیں، میں اگر بولوں گا اچھا، کہ اس میں تھی اور چینجنگ ہوئی ہے، آپ بولیں گے دلیل دیں. بولیں گے اور نہیں ظاہر بولیں گے؟ ہے، ظاہر ہے بے وقوف ہے، ہاں دنیا بے وقوف ہاں ہے. بس جواب دے دیے، ہاں یہی ہے یہ، آپ کا. یہی ہاں ہاں یہ آپ یہاں کی پہ اصل پکڑیں گے. صورت ہے، یہ آپ کی ہاں یہاں پہ حقیقت ہے پکڑ لیا. کہ اب آپ کی، میں تو پکڑا یہ گیا، ہے آپ کی میں تو حقیقت، پکڑا یہ ہے گیا. آپ کی حقیقت، ابھی میرے یہ ہے سوال آپ کا کی جواب حقیقت، دیں گے؟ میرے یہ سوال کا ہے آپ جواب کی دیں گے؟ حقیقت. علی میں تو صاحب پکڑا گیا، یہ ہے میرے آپ سوال کی کا جواب حقیقت. دیں گے؟ ہاں پہلے میرے آپ سوال کا مانیں کہ جواب دیں گے؟ آپ مانیں کہ آپ اپنے اس دعوے میں غلط ہیں کہ قرآن میں ہاں تبدیلی ہوئی ہے. پہلے آپ آپ یہ مانیں. جیت گئے. آپ بڑے اعلیٰ یار شخصیت ہیں، جیت آپ ہار کی بات، جیت گئے. یار آپ وہی نا 7ویں پاس ہے نا، پھر آپ یہ جی میں حرکتیں فیل 7ویں ہوں، میں پاس والی فیل کر رہے ہیں ہوں. نا. آپ جواب نہیں دے سکیں گے، آپ تو میرے سوال سات کا جواب نہیں دے جواب سکیں گے. کیا ہے، آپ اپنے نتیجے پر پہنچ گئے ہیں. اچھا آپ آپ کو مجھے آپ دلیل کو دیں، ابھی آپ اس چیز کو کی آپ گردن مجھے سے، دلیل دیں. آپ کو گردن سے باندھ کر میں نے قلعے کے ساتھ باندھ کے رکھا ہے، آپ نے منہ سے ہاں نکال دیا ہے، بڑی بات ہے، منہ سے بڑی نکال بات دیا ہے. آپ نے. ابھی اب آپ دنیا کو ابھی پتا آپ چل نیچے گیا. تو نہیں اتاریں گے؟ ابھی آپ ہاں نیچے تو نہیں 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 اتاریں گے؟ اتاریں اب گے میں نہیں، بات کروں، لیکن اگر آپ اسی میں طرح بات کروں. اسی طرح غلط یہ طریقے وہ سے آپ کا جواب تو بچکانہ میں نے دے حرکتیں دیا کریں ہے. آپ کا جواب تو میں نے دے دیا کہ میں، آپ بھائی یہ سوال جب کر رہے ہیں، میں جواب دوں گا. آپ آگے سے یہ جواب مجھ سے تو مانگیں ٹھیک گے؟ تو وہ بس بات ٹھیک تو ہے میں نا، نے پھر بول آپ دی ہے. دلیل لائیں، آپ نے پھر کہاں آپ پکڑا ہے؟ دلیل لائیں، آپ نے کہاں پکڑا ہے؟ پھر آپ نے دلیل کہاں لائیں پکڑا آپ، ہے؟ پھر
میں نہیں आपने पकड़ा कहाँ आपको, पकड़ा है? मैं नहीं पहुंचाया वहां जहां आप पहुंचे हैं, हाँ वहां मैंने अच्छा, पहुंचाया आपको। आप क्या मैंने तो लेना चाह बता रहे थे? दिया।
हाँ नाइट मैंने राइडर तो भाई बता अब दिया, इनके जाना नहीं नाइट आप राइडर मुझसे भाई क्या मांगेंगे? ठीक नाइट है। राइडर भाई अब इनके हाँ साथ जी, काफी हो गया है। अभी एक और, अब हाँ दोबारा अच्छा से बस, इनसे वही सवाल। अभी हाँ मैंने इनको म्यूट अभी किया। नीचे नाइट राइडर उतारेंगे, भाई, नीचे ये आपने उतारेंगे, हकीकत नाइट और नहीं नहीं नीचे अभी नीचे तो उतारना क्या उतारेंगे। अब ये अच्छा हरकतें ये करके चाह जवाब आप रहा ले है, क्या लें, साबित करेंगे? ये चाह रहा है जवाब कि तो ले मुझे लें, हमसे आपके पास जवाब तो कुछ ले भी नहीं लें, है, अच्छा जवाब तो आपके पास ले कुछ भी लें, नहीं जवाब है, तो ले नहीं लें, अच्छा जवाब आ जवाब तो गया ले है, लें। जवाब आ गया है अच्छा कि बस, आप जीत आपने गए, जो आप दावा भगाएंगे, किया है ना, एक मिनट आप ठहरें, जीत गए, आप भगाएंगे आपने मुझे। अच्छा नहीं बात सुने ना, आपने दावा किया कुरान में तब्दीली होगी, दलील आपके पास नहीं है, अब ये ऐसे दावा अच्छा आपके नाइट पास राइडर क्या भाई दलील अब है? इनसे तब्दीली नहीं है आपके नाइट पास, राइडर क्या भाई दलील है? तब्दीली नहीं है, अच्छा आप बिल्कुल दलील दें, अच्छा आप मैं हम दलील दें, आपको बिल्कुल दलील देते हैं, बिल्कुल दलील आप देते आप दलील पहले दें, दलील दलील दें, कुरान देते से हैं, आप तब्दील, पहले दलील दलील देते कुरान दें, से हैं, दलील गुलाम चाहिए, कुरान से, आप कुरान से। दलील हाँ कुरान मेरे से पास दलील है, कुरान मेरे से पास दलील है, कुरान से इनको मेरे पास देते हैं। दलील है, हाँ, मेरे कुरान, पास है कुरान में आप नाइट राइडर दलील भाई देंगे कि ये हाँ मेरे चेंजिंग पास नहीं दलील है, है, तो हाँ उसमें साबित मेरे करना पास पड़ेगा दलील कि है नमाज भाई। का अच्छा तरीका कहाँ है, ओ भाई चुप हाँ करना है, साबित दलील करना लेनी पड़ेगा है, आपको फिर। दलील लेनी है, हाँ जी जी, दे दलील दे, लेनी है, दलील दे, तो मुंह पर टेप लगाएं, टेप लगाएं, ये तरीका दलील नहीं दे, होता। हाँ हाँ, दे दो दो दलील दो दे, दो दो उसके दो, बाद ये मेरा तरीका नहीं जवाब भी होता। ले गया, दलील के नहीं बाद नहीं बस आपने जवाब भी ले आपने लीजिएगा। जवाब नहीं लेना, आपने जवाब ही नहीं लेना, नहीं नहीं नहीं, आपने फिर नहीं भाग लेना रहे हैं जवाब। आप उस चीज से, भाग रहे हैं, आपको पता है अभी आपको अच्छा मैंने पकड़ना है, आप फिर भाग रहे हैं उस चीज से, अच्छा आपको पता है बोलते आप रहें, पकड़े जाएंगे इसी बोलें चीज पे, आप बोलें आप पकड़े बोलें अच्छा जाएंगे। एक मिनट, ये बोलें आप चुप आप करेंगे हमें तो मैं पकड़ने जवाब आए थे, दूंगा ना। हाँ ये पकड़ने आए अच्छा थे, ये हमें कौन? पकड़ने ये आए अभी थे, तो आप आप कह हमें रहे हैं कि हमने पकड़ने आए आपको थे। गर्दन से पकड़ा है, नहीं अभी नहीं आपने वो बोला नहीं, कि मैंने हमने तो आप आपको पकड़ा हमें है, गर्दन से मैंने तो पकड़ा, आपको आपको बिल्कुल गर्दन गर्दन बिल्कुल से से। सही, बांध के किले से बांधा है। बिल्कुल वो मैंने तो वो तो बांधा मैं बांध है। अभी दिया बांधने वाला अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ ना, आप भाग किधर हैं? अभी हाँ तो अच्छा मैं बांधने वाला अच्छा हूँ, भाग चले किधर ठीक रहे है, हैं आप? अच्छा हाँ चले, कभी अच्छा नहीं चले, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, दलील मेरे दे, अच्छा पास फिर जी मैं दलील नाइट आपको है। राइडर बांधता हूँ, भाई, दलील दे, नाइट मैं आपको राइडर भाई बांधता हूँ, चले, अभी अब एक दलील दे फिर। दोबारा से चले, अब दोबारा से एक सवाल पूछ लेते हैं कि अब ये बता हाँ, दें सवाल पूछना कि है, आप जवाब नहीं देना, और क्या जवाब नहीं और देना, यार सवाल वही पूछना है। वही जवाब वाली ये है, जितने जवाब भी सवाल वाली लोग डालना पूछ है, यार रहे हैं, बात ये तो करने देखो दो, आपको 2 घंटों किले से अच्छा के बात जरिए तो इन्होंने करने गर्दन दो, से मुझसे बांध दिया और है, भैया अब बात गाल तो किले करने के दो किया ना, है, जरिए बांध अभी अब दिया ये है, ये आपका तकलीफ भागेंगे, आपको याद अभी रहेगी। ये अब मुझे आप नीचे उतारेंगे, ये अभी तकलीफ ये लोग अच्छा भागेंगे। अभी हाँ क्योंकि हाँ अब ये शोर कर रहा है, शोर कर रहा है कि ये इसको हरबे नीचे उतार दें, हाँ ये हरबे शोर हमें कर रहा बहुत है। आते हैं, गलत अच्छा ग्राउंड नाइट पर आ राइडर गए भाई आप, अब दोबारा गलत से ग्राउंड पूछ पर आ लें गए। इनसे कि क्या ये बिलीव कर कुरान पाक में ये बिलीव करते हैं हाँ या नहीं करते। अब इनसे दोबारा से पूछ ले अच्छा क्योंकि ये ये देख थोड़ा सा ना जलेबी। हाँ हाँ थोड़ा सा ना मलिक साहब अजीज जलेबियां साहब ना तले, थोड़ा सा ना 4-5 बंदे मिल के ना जलेबी एक बंदे आपके के साथ लड़े, आपको पता ही नहीं जवाब चला, दें। समोसा बनाकर आप 10 समोसा 10 बनाकर बंदे आपको बैठ के कहाँ दिया है, आपके 10 हाथ बंदे बैठ में, के जवाब नहीं दे सकते, आप आपको मेरी पता ही नहीं बात का चला। जवाब नहीं दे यार सकते। अली मैं साहब अच्छा साथ अच्छा, पढ़ी मेरी हुई है बात ना, सुने, साथ पढ़ी हुई है मेरी ना। बात सुने, इसी बात पे आके अच्छा मैं अभी आपको कूल किले डाउन पे हो जाए, बांध देता कूल हूँ, मेरे डाउन हो जाए, सवालों का कूल जवाब डाउन हो देंगे? जाए, अच्छा कूल चले डाउन अभी किले चले पे अब बांध ये देता हूँ, आप बता अच्छा जवाब दें जरा देंगे? कूल डाउन हो नाइट राइडर भाई जरा दलील दे, एक मिनट चले एक मिनट, सब चुप कर जाए, सब अच्छा म्यूट दलील लगाए, एक देते हैं मिनट, दलील दे, दलील जरा दे, नाइट राइडर भाई। आप अच्छा दलील दे रहे नाइट थे, राइडर दलील भाई, दें। अच्छा आपको दलील तरतीब देते रखे हैं। ना, नाइट तरतीब राइडर रखें, भाई स्लो अब डाउन इनसे हो, ना स्लो एक डाउन हो, दफा पूछ स्लो ले डाउन हो, कि स्लो ये डाउन हो, कुरान स्लो पाक पे डाउन हो। बिलीव हाँ करते हैं। अब देखें इतनी नहीं नहीं बात के करता, बाद नहीं करता, नहीं करता, यार नहीं एक जा रहा करता, हूँ, कुरान उधर पे जा अच्छा रहा बिलीव हूँ। करता हूँ, हाँ तो जो चेंजिंग कुरान है, पाक पे, अच्छा चेंजिंग है। हाँ चेंजिंग अच्छा है, लेकिन अच्छा उसकी ये दलील बता। क्या है, हाँ उसकी दलील क्या है, हाँ ये उसकी बता दलील तुम दे दो। दलील जो ठीक दे है। रहे थे वो दलील दो, मैं आगे देता हूँ, दलील पहले आप दें, नहीं जो आपने अभी दलील दे रहे थे वो ना दलील दें आपने पहले। दलील देनी है, क्योंकि हम्म आपने मैं दावा किया, अभी, हमने नहीं किया, आपने मुझे मेरे आपने आपने दावा मेरे बारे किया, में बोला है, मैंने किले से बांधा है पट्टा मत आपने डाल के, अभी यार मैं आपको पट्टा अली डालूंगा, साहब अब आए अली साहब मैदान में आए, अली साहब भागे बात नहीं, सुने, अली मैदान में साहब आए, भागे अली नहीं, साहब मैदान में अली आना साहब पड़ेगा। पट्टा डल गया है, तड़पे ना, सुने वो तो अच्छा बांधना जरा बात मैंने अच्छा है, जी आप नाइट मैदान राइडर में से भाई, उतरे हैं, नाइट मैदान राइडर में से भाई उतरे हैं जरा ना, चले बात क्या चले कर रहे हैं? ठीक हो गया। दो अब तरीके आपका से कर अच्छा लेते हैं। नाइट राइडर भाई, अली साहब आप नाइट राइडर भाई इंसान है कि नहीं है, राइडर अच्छा साहब, राइडर मैं नाइट कह साहब, रहा हूँ राइडर जरा आपको भाई, आराम से बांधा बात कर जाएगा, लेते आप हैं यार। भागेंगे, अच्छा अभी आप नाइट राइडर भाई भागेंगे, दोबारा इनसे आप सवाल दलील कर दे लेते रहे हैं। थे, दलील अच्छा नहीं, चले जी अब यार हर वक्त मेरे चले से सवाल करने, उससे अच्छा जवाब यार देने वो दे मुझे। अच्छा ओ चल यार जवाब भी देते हैं ना। अब आप बता दें Question- आप दलील दें, कुरान पाक नहीं पे नहीं नहीं बिलीव नहीं, करते राइटर साहब दलील दें, हैं। जो यार दे रहे ये
تو दलील बता दें। देना। अच्छा नहीं नहीं दलील नहीं दे अभी रहे। बचाए अच्छा नहीं, राइटर साहब को ओ बचाए यार नहीं, अभी ओ राइटर साहब को अच्छा नहीं नहीं बचाया। बचाते। ओ अच्छा नहीं नहीं ओ नहीं अच्छा नहीं, अभी अच्छा जी आपको आपकी पता है गोली फिल्म से हो बच गई है, आपके अच्छा साथ फिल्म हो अच्छा गई एक है। चले मिनट ना, अच्छा चले पकड़े गए अच्छा पकड़े गए। यार यहाँ से मेरे हाथ से ना जाने दे, एक मिनट अच्छा ठहर जे ना जी जरा, ठीक है हाँ एक ये मिनट हुई ठहर जे, बात, ठहर जे, ये हुई बोले बात राइटर अली साहब, साहब, ये बोले हुई कोई ना, बात। बोले आ कोई ना, जाए बोले आ जाए अली साहब मैदान बोलो, में आ जाए, अली साहब मैदान बोलो, में आ जाए। बोलो दलील दे रहे थे वो, दलील दें, वो बोलो। दलील दें, दलील दें। अच्छा कुरान में दलील तो दे रहे थे थोड़ी देर पहले, वो दलील जो दें। मुझे दलील, एक मिनट, अच्छा यार फिर चुप करना है, बात कर, दलील दे कैसे दूं जब आपका मुंह ही नहीं बंद हो रहा? चुप्पी तो है, मुंह चुप्पी बंद तो है, करके दूंगा। चुप्पी तो है, बोले। सवाल कर लें, सवाल कर लें, कर लें नहीं सवाल, नहीं, जो दलील दे रहे थे वो म्यूट दलील ना दे, मैं करें, सवाल क्या करूं, दलील दे। बस बात खत्म होगी कि नहीं हुई? मैं अभी करूंगा, आप दलील तो देना, जो बात को नहीं घुमाए, दलील दे। हाँ, जो मुझे दलील ना दे मैं उसे चपेट दूंगा। पहले मेरी दलील कहां जाएगी भाई दलील साहब? नहीं 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 नहीं, आप मेरी पकड़े, दलील नहीं 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 थी, नहीं, आप आपने नहीं, मेरी आप नहीं दलील नहीं मांगने थी, दूंगा।
آپ نے بات ختم کر دی. آپ نے کہا میں نے پٹے سے باندھ کے قلعے پہ باندھ دیا, تو میں آپ کو باندھنے والا ہوں, میدان میں اترے ہیں. یار یہ انسانیت بات ہے نہیں آپ کی. گھمائیں, بات نہیں یہ آپ گھمائیں. کی انسانیت دلیل ہے. دے, دلیل دے, یہ انسانیت ہے آپ دلیل کی. دے. اچھا وہ چلے میں نے دلیل باندھی. میں ان سے کر دیتا آپ ہوں. میں نے نائٹ دلیل رائڈر بھائی باندھی. میں ان سے سوال آپ کر کہاں آپ دیتا جائے ہوں. گی؟ انسان ہے, آپ میں انسان نائٹ کے رائڈر بارے بھائی میں سے بات میری سوال کریں. کر دلیل دیتا کہاں ہوں. جائے گی؟ پٹا پہلے میری نائٹ دلیل رائڈر بھائی قلعے پہ میں ان باندھ سے دیا, سوال یہ کر بات دیتا ہے. یہ ہوں. پٹا اچھا جی, ڈلا ہوا میں ہے آپ بات کو. کر, یہ اچھا نہیں نکلے نائٹ گا. رائڈر بھائی یہ میں ان آپ سے کو سوال ابھی کر میں لیتا ہوں. باندھنے اچھا والا جی ہوں, اب آپ آپ کو بتا بچائیں دیں. گے جو آج اچھا کو چلے بچائیں گے ابھی سارے, ابھی علی بچائیں بھائی, گے آپ کو علی سارے. بھائی, اچھا علی بھائی اب آپ بتا دیں. سوال نہیں یہ نہیں, تھا ساحل بھائی ان آپ کو نے جو بات کرنے نہیں دیں. تبدیلی کی نہیں بات بچوں کی کی نا. طرح ذرا شروع رک ہو جائیں, جاتا ہے بھائی. اوہو اچھا رک چلے جائیں بتائیں. آپ ساحل نے بھائی, کہا نا رک جائیں. تبدیلی, اچھا آپ نے بتایا ہاں تبدیلی ہوئی ہے قرآن پہلے پاک اس میں. کی دلیل دو. کس پہ دلیل دے دیں. آپ کا ہاں یقین ہے کہ قرآن پاک میں تبدیلی ہو چکی ہے, تو میرے بھائی آپ کو پھر کیا کرنا پڑے گا. یہ دلیل دو. چیز ہے, آپ کو جب ایک اوریجنل, آپ کے ہاں اوپر آپ کو سوال ایک آتا ہے نا, آپ اوریجنل پرانی بتانا بات کو پڑے گا اٹھا نا. لیتے ہیں. بھائی آپ اوہو کے پاس یار جواب آپ نے ایک ہے دیکھو ہی اوریجنل نہیں, یہ آپ بتانا کے یہ ہے. پاس ساتھ پڑا نہیں ہوا ہے نا. جواب ہے بات ہی سنیں, نہیں. آپ نے یہ بتانا یہ ہے. ساتھ اچھا پڑا بات ہوا ہے. سنیں, اچھا بات سنیں, آپ نے آپ نے دینی ہمیں ہے, یہ آپ نے بتانا ہے کہ دینی ہے, یہ آپ بات نے یہ دینی ہے. کرتے میرا ہیں ٹائم ساتھ پڑا ختم ہو ہوا گیا, ہے. ابھی آپ کا یار شروع ابھی ہوگا, آپ آپ یہ نے دیکھیں نا. دینی ہے. اچھا چلے, اچھا پہلے چلے. آپ دلیل نہیں دیں گے تو بلیو آگے آپ بات کا, ہوگی. نہیں بلیو ان کہہ کے تبدیلی ہوئی ہے تو دلیل ہم دے. دلیل ہم آپ کا دیں. یہ بلیو یار یہ ہے کون سی کہ بات ہے؟ تبدیلی ہو چکی ہے, تو آپ نے اس پہ ہمیں دلیل دے کہ یہ والی تبدیلی ہوئی ہے. میرا بلیو یہ ہے کہ قرآن میں چینجنگ اس لیے ہے, نہ ہی اس میں نماز کا طریقہ, نہ ہی کلمہ, نہ ہی اذان, نہ تو ہی یہ حج کے مہینے, دلیل کچھ بھی نہیں ہے. یہ یہ دلیل سب نہیں سے ہے. بڑی یہ اچھا دلیل دلیل تو نہیں ہے. یہ ہے. یہ, اچھا یہ نہیں جو نہیں, دلیل آپ نہیں ہے. دلیل دلیل یہ ہوتی چاہتے ہے. ہیں میری وہ بات بات سنیں, ختم ہو گئی, میری ابھی آپ بات میرے سنیں, سوال میری کا بات جواب سنیں. دیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک منٹ ذرا رکیں. ہم کہتے ہیں کہ دیں گے, قرآن تبدیلی میں ہوئی ہے. چینجنگ نہیں ہے. نہیں بات ساحل سنیں صاحب یار, رک ابھی جائیں, ساحل یار صاحب رائڈر درمیان صاحب میں سے بات رکو. کرنے دیں. یار ساحل صاحب ابھی یار بچائے نہیں, بات کرنے دیں ان کو, اور بچائے نہیں, ابھی بات بچاتے. کرنے دیں اچھا مجھے اس آپ کے کو ساتھ. شاید سمجھ نہیں نہ آ رہی, شور نہ کریں, آرام سے بات کریں, شور نہ کریں. اچھا آپ جب ہم کہتے ہیں نا تبدیلی ہوئی ہے, تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ پہلے بات تھی, اب یہ والی بات نہیں, اس جس کی جگہ بندے کو یہ یہی نہیں بات آ پتا گئی ہے. تبدیلی کہتے یہ کس ہوتی کو ہے ہیں. تبدیلی. میں ہاں کہتا ہوں تبدیلی ہم کہتے نے, کس ہاں کو ہیں. پہلے کہتے ہیں کہ یہ بات لکھی ہوئی تھی, اب یہ والی بات کو کاٹ کے یہ لکھ دیا گیا ہے, یہ ہے جی ہاں, تبدیلی. تو یا اس کو آپ نکال بتا دیا دیں. گیا ہے. ہاں آپ بتا دیں, آپ نے کہا قرآن پاک میں تبدیلی ہوئی ہے, تو جو آپ نے بات کی ہے تبدیلی کی, اس کی آپ ہمیں دلیل دے دیں, بات ختم. کتنا سادہ سمپل دلیل سوال ہے. آپ نے دینی ہے, دلیل آپ نے اچھا دینی دعویٰ کس ہے کا ہے؟ کہ اچھا دعویٰ کس کا بلیو قرآن ہے؟ آپ میں کیا تو دلیل دعویٰ کس کا یار ہے؟ حد. آپ اچھا کہتے ہیں دوبارہ, چینجنگ نہیں, آپ نے چلے دوبارہ, نہیں, دوبارہ دونوں کا سوال دعویٰ, کرتے نہیں, ہیں. ون بائی ون چل بھائی, ون دوبارہ بائی ون سوال چلتے کرتے ہیں ہیں, نا, دوبارہ سوال کیا کرتے ہو ہیں. گیا بھائی, اچھا یہاں ان کسی کو نے سمجھ نہیں آ سوال رہی. نہیں چلے کسی گا, نے ون اگر بائی ون دعویٰ چلیں کیا گے, تو آپ ون بائی ون نائٹ چلیں رائڈر گے, بھائی ان کو سمجھ ون نہیں بائی آ رہی, ون میں دوبارہ چلیں گے, سوال کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ون میں بائی ان کو ون چلیں گے. ایک نائٹ سوال رائڈر آپ کا, بھائی ایک کو, سوال اچھا میرا, ون ٹھیک بائی ہے, ون چلیں وہ گے. قلعے سے ٹھیک ہے, باندھ ایک دیے, منٹ. پٹا پہلے ڈال کے اب جو مرضی نائٹ کرو. رائڈر بھائی ان کو نا سمجھ نہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی سوال کی, ہاں یہ سمجھ قلعے نہیں والے آ رہی. لفظ نہیں. میں ان کو دوبارہ ہاں سوال کرتا ہوں. دیکھیے علی صاحب, آپ کا یہ یقین ہے, آپ کا یہ بلیو ہے. جب کسی کا کوئی یقین ہوتا ہے, بلیو ہوتا ہے, اس کے پیچھے کوئی دلیل ہوتی ہے. آپ کا جو یقین ہے کہ قرآن پاک میں تبدیلی ہو چکی ہے, تو آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ والی تبدیلی ہوئی ہے, یہ والے الفاظ پہلے تھے, ہاں بعد میں تبدیل کر کے یہ اس کی جگہ پہ جی ڈال دیے گئے ہیں, یا لاجیکل یہ بات ہے. آپ ہمیں وہ تبدیل, ہم ہاں غلط بس بات تو کر آسان سی نہیں رہے. فضا, صاف سی یہ بات ہے. آسان سی فضا. جلیبیاں جلیبیاں تل کے 2 بھائی گھنٹے جلیبی سے آپ کا باز کام وہ ہے حلوائی, جلیبیاں اچھا وہ چلے, تلنا. بھائی حلوائی. اچھا چلے, میرا شاید سوال ان کو سوال جلیبی میرا سمجھ نہیں باز آ نے رہا. سوال کہا نا نائٹ وہی رائڈر دلیل کا بھائی دو وہی دوبارہ مجھے. سوال کرتے ہیں, ہے, یہ رائڈر ہلوائی صاحب پنا کو بعد میں میرے کرنا. کو چپ دوبارہ کروا. سوال کرتے ہیں, دوبارہ یہ سوال ہلوائی کرتے ہیں. پنا نائٹ بعد رائڈر میں بھائی کرنا. ان کو ابھی سمجھ نیچے نہیں آ اتاریں گے, رہا. ابھی نیچے اتاریں گے, یہ جواب نہیں دے رہا, ابھی آپ بولیں گے اس یہ کو چاہ نیچے رہا اتارو. نیچے اتار, یہ چاہ رہا نیچے اتار. ہاں رو رو شور رو کر رو رہے لو رو لو. اچھا اب یہ رو شور, لو. یہ اچھا شور کر رہے مجھے نیچے اچھا اتارنا دوبارہ ہے. سوال بہت کرتے ہیں. رو لو بول رو دیا, لو. آپ نے یہ بہت ٹرک بول ہمیں دیا, اچھا ابھی بہت مجھے آتے بولنے. ہیں علی صاحب, اچھا بچے ہیں مجھے آپ. بولنے دیں, نہیں نہیں اچھا نہیں, ابھی مجھے دوبارہ, ٹرک ہمیں بولنے بہت دیں, آتے ہیں. مجھے ہاں بولنے دیں, آپ سے مجھے ابھی بولنے چلے دیں. ٹھیک ہے. ابھی نا ان کو شاید سوال 10 کی نائٹ سیکنڈ, رائڈر بھائی 10 سمجھ نہیں آ رہی, سیکنڈ, 10 ہم ان کو سیکنڈ, سمجھ دوبارہ نہیں آ ساحل رہی سوال اس صاحب کر بندے 10 کو. دیتے ہیں. سیکنڈ, ساحل صاحب آپ آگے کو کو بات دوبارہ دوسرے کریں. بھی سوال چلتے کر ہیں. دیتے 10 ہیں, سیکنڈ, دوبارہ 10 سوال سن لیں, سیکنڈ. چلے دوبارہ سوال نو نو سنیں نو جی. نو 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 نو, چلے پہلے نہیں 10 کوئی سیکنڈ 10 مجھے سیکنڈ چاہیے. نہیں ہے. چلے
دیں, کوئی 10 10 سیکنڈ سیکنڈ دیں. نہیں نہ 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 ابھی آپ کو باندھوں ان کو گا نا میں 10 نائٹ رائڈر بھائی, ان کو چلے جی نائٹ رائڈر بھائی 10 سیکنڈ گنتے ہیں, چلو جی بولے جی. اچھا دو یہ کہاں 1 2 3 4 یہ کیا ہے 10 سیکنڈ گنتے ہیں. اچھا چلو بولو بات چلو تو نا, 10 کرنے سیکنڈ دینا, بولو, بات تو کرنے بولو دینا, بات تو بولو, کرنے 10 دینا. سیکنڈ بولو, چلو جی 10 سیکنڈ بات کرو. میرا بلیو ہے کہ چینج ہو چکا ہے, آپ کا بلیو ہے کہ نہیں چینج ہے, مکمل چلے ہے. آپ بولیں کہ آپ کا 10 بلیو سیکنڈ نہیں ہو گئے, ہے کہ چلے نہیں ہے, 10 سیکنڈ ہو گئے, 10 آپ کا ہے سیکنڈ نا ہو گئے بلیو, تھے آپ کے آپ نے پورے. یہاں آگے کہا اب تھا. ہے کہ اب نہیں 10 ہے, یہ سیکنڈ بتائیں پورے ہو ہے گئے. کہ نہیں ہے. آپ کو او بھائی بات سنو, آپ نے 10 سیکنڈ بولے, ہم نے آپ کو 10 سیکنڈ دیا, اب ذرا خاموش ہو جائے. اب نہ بولے. اب آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے, آپ نے کہا آپ کا یہ یقین ہے,
आपका जो यकीन है, उस यकीन के पीछे आपके पास जो, देखो अली, अगर आपके पास दलील नहीं ना तो आप कह दो मेरे पास नहीं है हाँ नहीं है, यकीन, बात ये खत्म, दलील, हाँ इसमें कोई आगे बात नहीं। चलें। अगर आप ये कह देते, हम आगे बात को बढ़ाते हैं। कोई या मकसद आपको देखें, हमें पता चला कि आप बड़े तेज तराज बन रहे थे, तो हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं है, और हमें पता है, आपने हमें बताया आप 7वीं इसलिए पास तो आप हैं, सवाल आपने नहीं हमें लेते बताया, मेरा, यार बात इसलिए तो तो आप सुनो, मेरा सवाल नहीं और लेते। यार अस्सलाम दरमियान वालेकुम में वरहमतुल्लाह। साहिल भाई अस्सलाम जी वालेकुम। सर, जी वालेकुम सलाम। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये जो मिस्टर साहब बैठे हैं वो कह रहे हैं कि मेरा ये बिलीव है कि कुरान तब्दील हो गया है, और आप लोगों का ये बिलीव है कि कुरान तब्दील नहीं हुआ। तो ऐसा कर नहीं, लेते हैं कि मुफ्ती साहब माजरत करने दे, माजरत उनको मुफ्ती बात साहब करने दे। नहीं बात नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं मौलाना एक को मिनट बात करने दे। नहीं 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 और नहीं, आप चुप नहीं करें बोले, ना, आप एक नहीं मिनट बोले चुप बीच करें, में। और उनको चुप बात करें करने दे, उनको बात, आप आप पकड़े जाएंगे, चुप यही करें, आप पकड़े जाएंगे, आप चुप चुप करें, करें, मैं उनको उनसे बात बात करने कर दे। रहा हूँ, चुप करें, नहीं नहीं मैं नहीं उनसे नहीं नहीं, बात कर ऐसा रहा नहीं होता। हूँ, नहीं नहीं चुप करें आप। मुफ्ती साहब ये मामला ना थोड़ा सा उधर हो जाएगा, क्योंकि आप बाद में तशरीफ लाए हैं, हमने कोई दावा नहीं किया। अब आप बात जब करेंगे ना, जब आपके सामने पूरी बात होगी, फिर आप वो माशाल्लाह आपकी इल्मियत के आगे तो हम कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको क्योंकि सिचुएशन समझ आ जाएगी ना, फिर आप ताकि उसके हिसाब से बात आगे लेके चलेंगे। इन्होंने दावा किया है, हमने नहीं किया, हमारा कोई दावा नहीं है। दोनों इन्होंने के दावा आपका किया बिलीव है, हर मुसलमान का बिलीव है, हर अल्लाह मुसलमान का बात बिलीव है। सुने, बात अगर नाइट आप राइडर, इंसाफ नाइट पसंद राइडर, एक इंसान मिनट। है ना, तो आप बात करने दे मुझे। अब नाइट आपको भाई, आपकी कली खुल रही है ना, तो तो मुफ्ती साहब बोलने दे, इन्होंने मौलाना साहब को कहा, क्यों नहीं बोलने दे रहे? इन्होंने मौलाना मैं साहब को बोलने क्यों नहीं देता हूँ बोलने ना। दे रहे? अच्छा वो ये आप ना, भाई बीच में ये क्यों साहब, बोल रहे? एम्बुलेंस वो दो, भाई मौलाना जब आए हैं तो उनको बात पट्टा तबलीग मैं करने दे। खींच आप दूंगा, मुझे भी नहीं बोलने दे रहे, मौलवी जलेबियां साहब को भी सारी नहीं बोलने दे खराब रहे। हो जाएंगी, अच्छा ये मैं ना, पट्टा ये ना, खींच दूंगा, जलेबियां हाँ, खराब हो जाएंगी। जरा ये बात ये सुनो ना, आपकी मुफ्ती असल में, साहब, अच्छा आपने अब ये जरा जो खामोश, ये जुमला बोला आपकी है ना, हालत है, मौलाना अच्छा साहब अच्छा को कि अच्छा, मैं आपने खामोश बात पट्टा हो नहीं जाए, करने खींचूंगा, दी। आवाज खामोश, जलेबियां सब खत्म हो जाएंगी। अच्छा खैर जो नाइट राइडर मुफ्ती भाई, साहब नाइट राइडर आपने, भाई, साहिल अच्छा भाई एक मिनट मुफ्ती हाँ, साहब आपने जो बात की है ना कि इनका ये और हमारा ये, नहीं ऐसे नहीं है बात। वो हमारे, हमने तो अभी अपनी बात नहीं की। इन्होंने कहा कि कुरान करीम में तब्दीली हो गई है। मैंने इनसे सवाल किया कि इन्होंने दो बातें की, मुझे लगता है कि कुरान मजीद में तब्दीली हो गई है। मैंने कहा आपको लगता है या आपको यकीन है? वेट करो, इन्होंने कहा जी मुझे वेट करो, 100% यकीन वेट है करो, कुरान में तब्दीली हो गई है। तो मुफ्ती साहब मैंने कहा दलील दे दें। इन्होंने दलील क्या दी कि कुरान करीम में वेट करो, वुजू का तरीका नहीं, नमाज किस तरह पढ़नी है तरीका नहीं, वजू हज का की नहीं बोला, कितने ऐड नहीं अरकान करे, हैं। वजू का नहीं बोला, हाँ, ऐड नहीं करे, मैं अपनी तरफ से मिसाल ऐड दे नहीं रहा हूँ करे ना, बातें, अपनी तरफ मिसाल से यही ऐड, दी। मिसाल नहीं दे, ओए मिसाल नहीं दे, मैंने जो बात की वो अकल जवाब के दे। पहाड़ इन्होंने पे बोला खड़े हुए नमाज का बंदे तरीका, हाथ मल रहे, अकल के पास नहीं गुजरी। यही आपका मकसद था ना कि नमाज का हुक्म आया, नमाज का पूरा तरीका नहीं बताया। ठीक है, बात को खराब करना आपका मकसद है और कुछ नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, इन्होंने अपनी दलील ये दी कि कुरान करीम में नमाज का हुक्म तो है, लेकिन नमाज किस तरह पढ़नी है वो अल्लाह ने नहीं बताया। ये नहीं हो सकता कि उसमें ये ना हो, लिहाजा उसमें तब्दीली होगी है। मैंने पूछा देखें, अगर तो किसी किताब में कोई चीज सिरे से लिखी नहीं गई तो उसमें नहीं है, ये तब्दीली आप कहते हैं, उसको तब्दीली कहते हैं, या कोई चीज लिखी गई थी उसको निकाल दिया गया उसको आप तब्दीली कहते हैं? इन्होंने इस पर कहा हो ऐसे हो वैसे, यानी पहले इन्होंने कहा कि मुझे यकीन है और दलील शक की दे रहे हैं। मुफ्ती साहब मैं गलत हूं इस बात पर? आप फैसला फरमाइए। अच्छा अच्छा, यकीन बिल्कुल की मुफ्ती दलील साहब, यकीन होनी अच्छा चाहिए या यकीन की अच्छा, दलील शक होनी इसमें चाहिए? जी बिल्कुल, अच्छा एक मिनट, मैं ना फ्यू सेकंड चाहिए मुफ्ती साहब, सॉरी वेरी सॉरी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा नाइट राइडर भाई, जो इनका शौक है ना कि कुरान पाक से तब्दीली का, कि तब्दील नहीं इस कलाम में, तो अल्लाह ताला के कुरान में आयात हैं जो बताती हैं ला तब्दील अली कालिमात। हाँ वो तो हमारा अभी हम वो करेंगे मकसद, हाँ बात। हमारा वो मकसद बिल्कुल, अभी हमारा वो हाँ मौजू नहीं है, उस पर हाँ इंशाल्लाह वो गुफ्तगू मौजूद नहीं करेंगे। है हमारा। पहले ये बात कि क्लियर हो इन्होंने जाए, जो दावा जो किया है हाँ उस पे इनके पास क्या दलील है वो पूरी कर दें, जी, तो फिर आगे बात ये है ये है मुफ्ती साहब। जी मैं अर्ज करता हूँ, बात यह है कि बात कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन लोगों को कुछ समझ तो आए ना, कि दोनों तरफा समझ आनी चाहिए, आपकी भी समझ आए, उनकी भी समझ आए। मुसलमानों की तरफ से एक बंदा सामने आ जाए, और ये तो चलो गैर मुस्लिम है, तो वो नहीं तो नहीं नहीं, मैं मुस्लिम हूँ, किसने कहा गैर मुस्लिम हूँ? नहीं हूँ मैं गैर मुस्लिम, मुझे गैर मुस्लिम नहीं बोलिएगा। ये बात तो करने दें, बात करने दें। तो बात ये है कि उसका कोई टाइम बंदा तय कर लेता है जी, 1 मिनट तुम बोल लो या 2 मिनट तुम बोल लो, 2 मिनट हम बोल लेंगे। वो फिर ना खलते मबस हो जाती है, बात पे बात चढ़ जाती है, तो वो किसी को कुछ समझ ही नहीं आती। तो बात ये है कि मिस्टर साहब
मुस्लिम तो नहीं है आप, क्योंकि कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है कि जिसका ये बिलीव हो, ये अकीदा हो कि कुरान के अंदर तब्दीली हो गई है, वो तो मुसलमान ही नहीं है, वो काफिर है। और अगर आप पहले मुसलमान थे तो अब इस अकीदा रखने की वजह से काफिर हो चुके हैं, अब आप गैर मुस्लिम हो गए ना, मुस्लिम नहीं, मुसलमान का ये अकीदा ही नहीं है। तो अच्छा, अपने मुंह से आप भले जितना मर्जी कहते रहे मैं मुस्लिम 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 रट लगाएं, लेकिन आपके कौल और आपके फेल के ऊपर हुक्म लगेगा और आपके ज़ाहरी मामलात को देखते हुए फैसला किया जाएगा कि आप क्या है। तो अगर आपका ये बिलीव है भाई, आप कहते हैं, देखिए हर दावा जो होता है अपनी दलील रखता है, और जो दावा बगैर दलील के होता मुफ्ती है, साहब अगर उन्होंने इतराज है तो जिंदीक कह लवो, जिंदीक कह लवो सर। अगर दावा बगैर दलील के हो तो वो कल मादूम होता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। देखिए बगैर दलील के दावे करने वाले तो बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग हैं, लेकिन दलाइल नहीं होते तो उनकी तरफ कोई तवज्जो भी नहीं देता। समझ आई कि नहीं? देखिए बड़ी बड़ी बहसें होती हैं दुनिया के अंदर, कुछ कह रहे हैं कि जमीन गोल है, कुछ कहते हैं कि नहीं जमीन गोल नहीं है, चपटी है, तो दोनों तरफ दलाइल दिए जाते हैं। समझ आई कि नहीं? तो जो दावा बगैर दलील के होता है, एक बंदा कहे तो ये रहा जमीन गोल है लेकिन दलील कोई नहीं है, तो लोग कहते हैं पागल हो गए यार, इसके दिमाग का इलाज होना चाहिए। अच्छा, अगर गोल जमीन की दलील दीजिए तो आप क्या मान लेंगे? बात करने तो दे, आप आ रहे हैं, मौजू वो ही रहेगा, आया कुरान मुहर्रफ है कि नहीं, मौजू और नहीं होगा। तो ये है कि मैं तो अभी सिर्फ आप दोनों हजरात, बल्कि 3 हजरात के मबैन तस्फिया करवाने के लिए बीच में कूदा हूँ कि आप लोग या तो नाइट राइडर बात कर ले या साहिल कर ले, दो में से एक करे, और मद्दे मौलवी मुकाबले साहब, बात सुन लें। मौलाना साहब, मैं एक बात भाई क्लियर करूं, डिबेट मेरी बात तो सुने। डिबेट आपकी इन्हीं से ही होनी है, सुन लें। नहीं, मेरी कोई डिबेट किसी से नहीं है, मेरा सिंपल सा सवाल है, मेरी डिबेट नहीं है, मैं किसी से डिबेट नहीं करता। मैं सिर्फ चंद सवाल है मेरे, और कोई मुझे जवाब नहीं देता और बदले में सवाल करते हैं। और मैं आपको यही एक थोड़ी सी सिंपल सी चीज समझाना चाहता हूँ। मैं अभी भी नमाज पढ़ता हूँ, मेरा अल्लाह पे बिलीव है, और मैं हर मस्जिद में जाता हूँ, जैसे मुल्ला नमाज पढ़ रहा होता है वैसे उसके पीछे, इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हूँ। मैं अभी भी पढ़ता हूँ और अपने आप को मुस्लिम कहता हूँ। अगर कोई मुझे काफिर गैर मुस्लिम कहता है तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उसकी समझ में जैसे आया उसने मुझे वैसे बोला। और आपको पता है कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं कुरान को क्यों कहता हूं चेंजिंग है, क्योंकि आप फिर उसकी मांगेंगे दलील कि उसमें निकाली गई, रखी गई। जैसे मैं कहूंगा कि खुदा कहता है कि नमाज कायम करो, और खुदा उसी कुरान में नहीं हमें बताता कि कैसे नमाज कायम करनी है, और ना ही हज के महीने बताता है, ना ही अजान, और ना ही कलमा लिखा हुआ है। तो ये इन चीज़ों से हर मुसलमान को, हर इंसान को जो पढ़ने लिखने वाला है, उसको थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर डाउट होता है कि ये अल्लाह की किताब है, इसमें ऐसा कोई क्यों नहीं है। अगर मैं किसी को हुक्म दूंगा अपने बेटे को, जाओ फलानी चीज़ लेके आओ, तो मैं उसको बताऊंगा कि कैसे लेके आनी है। अगर वो खुदा मुझे हुक्म देगा मेरी इबादत करो, तो खुदा मुझसे कुरान से सवाल पूछेगा, और मैं फिर सवाल पूछने का हकदार हूँ कि नहीं, कि कुरान में ये चीज़ तो है ही नहीं, तो मैं कहाँ से पढ़ता? क्या कुरान मुझसे, अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुमने हदीस क्यों नहीं फॉलो की? अल्लाह पूछेगा, क्योंकि हदीस तो अल्लाह की नहीं लिखी हुई, कुरान अल्लाह का दिया हुआ है हमें। तो अल्लाह पे, कुरान पे यकीन करूंगा कि मैं हदीस पे यकीन करूंगा। अल्लाह तो सवाल पूछेगा, कुरान से पूछेगा, ना कि मुझसे हदीस से पूछेगा। अब इसका मुझे सिंपल सा जवाब दें। जब मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा इस दुनिया से, तो अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि तुमने सलाह कायम क्यों नहीं की, तो मैं अल्लाह ताला से सवाल नहीं कर सकता कि ए खुदा, मेरे पैदा करने वाले, मुझे ये बताइए कि उस किताब में अपने नमाज का तरीका क्यों नहीं सिखाया। क्या अल्लाह मुझे ये कहेगा कि तुमने साहबा को फॉलो करना था और उसमें कुरान का तरीका, नमाज का तरीका आपने हदीसों से लेना था? क्या हदीस से मुझसे सवाल किए जाएंगे? इसका जवाब दे दूंगा। अच्छा, आपकी सुनिए, देखे बीच में बोले तो नहीं हम, आपने मेरी बात बिल्कुल को, नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। यही अखलाकी रवैया आपने रखना है, ओके, तब बात ठीक तरीके से होगी। लेकिन आप जैसे शोर डालने लग जाते हैं ना, जलेबी मैं नहीं डालता, आप सवाल पे सवाल डालते हैं, आप चुप कर जाएं। अब देखें ना, अब देखें अब आप हलवाई कह रहे हैं मुझे, आज नहीं, ये सेंस है कोई? जलेबियां जो आप किसी को हलवाई, आपने थोड़ी देर पहले, आपने नहीं, आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि मैंने पट्टा डाल के इसको बांध दिया। ये सेंस है बात करने की? ये तरबियत होती है? बिल्कुल मैंने किया, ये तरबियत है? मतलब किसी को पट्टा डाल के बांधना ये तरबियत है? मतलब आपकी तरबियत के मतलब के, अच्छा, मतलब के, अगर मतलब के मैं काफिर हूँ, ये देखे ना, ये ओ भाई अब उनको बात करने दो। अब बात नहीं करनी, ये है आपकी तरबियत, ये है साथ पड़ा हुआ बंदा।
मैं ना बोले, आप मौलाना सबने को बोलने दे, मौलाना को सबने बोलने दे, मौलाना को बोलने आपने दे, चुप कर फैसला जाए। करना है कौन बोलेगा ये ब्रॉड पर, आपने करना है फैसला। आपके पास जवाब नहीं है ना, नहीं, आप जवाब आपने नहीं दे सके, आप चुप कर जाएं। हाँ जवाब नहीं दे, चुप कर जाए। आपको मैं चुप करने का बताऊंगा, मेरे सामने हो बदतमीज तो। इंसान, अब दरमियान में बदतमीज ना आदमी बोलो, है आप, जाहिल इंसान है। दरमियान में ना बोलो, तुम्हारी अभी ये सारी आपने ये कितनी तरबियत है, देर ये तरबियत है, मैं खामोश हो बदतमीज ये और माजी, जाहिल खामोश हो, आदमी, आपकी खामोश हो। तरबियत ये है कि जब आप बोले ना, मुफ्ती साहब भी नहीं बोले, जब मैं बोला हूँ आपकी तुम्हारा बात हलवाई काट पे रहा आ हूँ। गया। मुफ्ती जब मैं बोला हूँ तुम्हारा हलवाई बोल पड़ा। ये है तुम्हारी तरबियत, अब इसको मैं खामोश तुम्हारी रखता बात हूँ, अब इसको मैं ये है खामोश आपकी रखता हूँ। जहालत। अब मॉडरेटर इसको ना म्यूट ही रखें जब तक हम बात अब इसको मुकम्मल नहीं म्यूट करते। रखें, जी ठीक है जी, बात जी। पूरी मुफ्ती करें। साहब आप बात कीजिए। अच्छा, गुजारा ये है कि मैंने जो हिसाब लगाया ना कि ये जो सामने बैठे हैं मिस्टर साहब अकली तौर पे मफलूज इंसान है, और ऐसे बात करेंगे तो वो लड़ाई होनी है और कुछ भी नहीं होना, बीच में कुछ भी नहीं होना, तूत काड़ होगी, गाली गलोच होगी, इधर उधर की बातें होंगी। तो मुकालमा किसी और चीज़ का नाम है, मुकालमा दलाइल के ज़रिए होता है। ये ऐसे एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करना, वो तो एक लड़ाई झगड़ा होगा, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई सेहतमंद मुकालमा नहीं हो रहा, ये यहाँ पे सिर्फ एक मुजादला हो रहा है, मुनाजरा नहीं हो रहा। तो अगर तो ये मिस्टर साहब वाकई मुकालमा या मुनाजरा करना चाहते हैं तो उसके कुछ असूल होते हैं ना भाई, असूलों के बगैर तो नहीं होता। अगर ये बगैर असूलों के ये चाहते हैं तो वो फिर पहले मैं नीचे बैठ के कोई आधा घंटा गुफ्तगू सुनी है, तो बाद में मैं आया हूँ तो उस वक्त भी यही हो रहा है। तो अगर तो वाकई करना चाहते हैं, लेकिन ये इतने पानी में नहीं है, मैंने इनका पानी देख लिया है। इनका मबदा इल्मिया और मबलग इल्मिया इतना नहीं है, ये बेचारे को कुछ भी इल्म नहीं है, और इल्मी गुफ्तगू ये नहीं कर सकते, और बस वो ये ना कि मैं ना मानूं, मैं इसको भी नहीं मानता, इसको भी नहीं मानता, इसको भी नहीं मानता। तो ये तो मुल्हिदीन अक्सर यही कहते हैं, दलाइल उनके पास होते नहीं हैं। तो मुल्हिदीन का ये पुराना ये तरीकाकार है, वो सिर्फ इनकार करते हैं कि मैं ना मानूं, मैं नहीं मानता, फलां को भी नहीं मानता, फलां को भी नहीं मानता, फलां को भी नहीं मानता। और जब इनसे बहस होती है और पूछा जाता है कि जैसे नाइट राइडर या साहिल एक काफी देर से पूछ रहे हैं कि यार दलील तो दो एक दावे की, तो दलील को नहीं है। तो वो बस यही होना है और कुछ भी नहीं होना। यहाँ 1 घंटा 2 घंटे बैठ जाएं, ये सिवाय खलते मबस के आपको कुछ भी नहीं मिलना। और अगर सेहतमंद मुकालमा करना चाहते हैं ये मिस्टर साहब, तो नाइट राइडर इनसे ना आप टाइम तय करें, और कोई 2 मिनट आप बोल लें, 2 मिनट ये बोल लें, और इनको इस चीज पर पाबंद कर दे कि जो भी दावा करोगे उसकी दलील देनी है, तो बस ठीक है। वो पहली टर्न के अंदर ही पता चल जाएगा, पहली टर्न में ही पता चल जाएगा कि बंदे ने कौन सी दलील दी है। तो अगर ये कोई दलील देंगे तो उसका तोड़ आप कर दीजिएगा, अगर दलील ना देंगे तो मुनाजरा वहीं पे खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जी नाइट राइडर बात करें। जी मुफ्ती साहब, बिल्कुल आपने माशाल्लाह, आपकी इल्मियत, आपका तजर्बा है, उससे हम सीखते हैं माशाल्लाह। आपने बिल्कुल जबरदस्त बात की है। तो ये इनके पास ये 2 मिनट ले लें, टाइम लगा देते हैं। इनका दावा है कि कुरान करीम में यकीन है इनका, और दावा है यकीन, ज़ाहिर दावा यकीन पर ही होता है कि कुरान करीम में तब्दीली हो चुकी है। उस पर मैंने इनसे दलील मांगी है, इनको 2 मिनट दे दीजिए, ये अपनी दलील दे दें, बस मेरी इतनी सी बात है। बेशक दलील इनको मैं टाइमर मांगूंगा, लगा आप के। नहीं मांगेंगे, सवाल मैं करूंगा। दावा किसका है? दोनों का दावा है। आप मैंने कहते हैं चेंज नहीं हुई, मैं कहता हूँ चेंज नहीं, है। आपने कसम खा के कहते हैं, मैंने एक दफा भी कहा चेंजिंग नहीं हुई, मेरा दावा आप है। बोले, आप मैं बोलेंगे बोला मुकम्मल है, आप बोले अभी बोले मुकम्मल है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, मैंने ऐसा नहीं एक कहा। मर्तबा भी हर कहा है, मैंने मुसलमान एक का दावा मर्तबा भी है कि कहा नहीं? है, आपका मैंने दावा एक नहीं है इस चीज पे? यही बात है ना। अब आपका आप दावा फिर नहीं वही है? काम नहीं शुरू तो कर फिर दिया। ये मुसलमान वो नहीं जब है, मैं करूंगा आप मेरे से दलील मुसलमानों का मांगना, दावा ये बता रहे हैं। जब नहीं, मैं ये क्या करूंगा, बात हुई? जब मैं अच्छा, करूंगा मतलब आप मेरे से कि मांगना। पिछले तीन एक घंटे मिनट, से आप सवाल कर ही आपके जाएंगे, मैं पास 2 सवाल नहीं कर मिनट है, सकता। आपके पास 2 मैं मिनट है, सवाल नहीं कर आप अपना सकता। 2 मिनट है, आप जवाब दें। जो दावा करता है ना वो दलील लाता है। मैं 2 आपसे मिनट, दावा 2 लूंगा। मिनट अभी लगाए मैं जो जी इनके, 2 मिनट। सवाल करूंगा वो आपसे दावा मांगूंगा। नहीं नहीं, सवाल बाद में होगा, पहले दावे की दलील होगी। मैं दावे की दलील क्या होगी? ये क्या बात है? हाँ, फिर दावा मैंने किया इनके दूसरे 2 बंदे आपने, मिल मिनट गए। शुरू कर दिए हैं, आपके पास मैंने 2 इनके मिनट 2 शुरू है मिनट जी, शुरू मैं कर शुरू दिए। मेरा करता हूँ। ये राइडर साहब हैं, मेरा इनसे सिंपल सा सवाल है। जितने भी मुसलमान हैं, हर मुसलमान का यकीन है कि अल्लाह ताला की किताब चेंज नहीं हुई।
हर मुसलमान का ये इस पे बिलीव है। अगर इनका बिलीव नहीं है तो ये मुझे बता दें, मैं दावा करूंगा और दलील भी पेश करूंगा। यार ये अपने मैं मुंह से दलील दे कह दूं दें। आपको, मैं नहीं, दलील फिर दे बात दूं। तो कंप्लीट, मौलाना साहब फिर टाइम दिया है तो बात कंप्लीट करने देना। फिर आपने भी तो जवाब नहीं दिया, अभी मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है। आपसे भी तकरीर की, आपने जवाब नहीं दिया, बात को घुमा के। तो सिंपल सी चीज़ यही है कि राइडर साहब अभी यहाँ पे फरमाएं सबके हाँ जी सामने कि मेरा क्या, हाँ जी, राइडर साहब अभी सबके सामने यहाँ पे फरमाएं कि कुरान मुकम्मल है, मेरा पूरा बिलीव है, और ये दावा पेश करें कि कुरान मुकम्मल है। उसके बाद मैं दावा करूंगा और उसकी दलील भी दूंगा, हर चीज़ दूंगा। अभी राइडर साहब, बात को मैं लंबा नहीं करूंगा, ये 1 मिनट मैंने आपको दिए, आप बात चालू रखें और मेरे सवालों के जवाब दें, और उसके बाद मैं दावा भी, दलील भी, हर चीज़ दूंगा। अभी आप कुरान से बात करेंगे, हदीस के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, कुरान से हर चीज़ साबित करें। चलें शुरू हो जाए, मैंने आपको अपना टाइम भी दे दिया, शुरू हो जाए। आप पहले ये बता दीजिएगा कुरान पे बिलीव है आपका, नहीं है, कि मुकम्मल है। अगर मुकम्मल है तो उसका जवाब दें कि मुकम्मल है तो नमाज का तरीका किधर है, अजान किधर है। खुदा मुझसे सवाल करेगा तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा? वो बोलेगा हदीस के ऊपर अमल करना चाहिए था। खुदा हमसे अपनी किताब का पूछेगा कि इंसानों की लिखी हुई किताब का पूछेगा, जिसका पता भी नहीं है आप लोगों को कब लिखी गई है, कब नहीं लिखी गई। 80 साल के बाद, 100 साल के बाद, 150 साल के बाद लिखी गई है। आज 10 बंदों को खड़ा करो लाइन में, एक बंदे को कोई बात बताओ, 10वें बंदे तक बात जाते हुए चेंज हो जाती है, उसको पता ही नहीं होता। आप कैसे बिलीव करते हैं? मैं तो आपकी अकल पे हैरान हूँ। कुरान पे सिर्फ बात करें। आप लोगों का, हर मुसलमान का बिलीव है कि कुरान मुकम्मल है। अगर मुकम्मल है तो नमाज का तरीका क्या है, मुझे गाइड कीजिए। और मैं अपने आप को मुसलमान समझता हूँ, मुझे दोबारा ऐसी बात ना कीजिएगा मोहल्ले वाली। और मुझे इन चीज़ों का जवाब चाहिए आपसे। आपके पास नॉलेज है, मैं जाहिल इंसान हूँ, आप जवाब दें। दे जी, मेरा टाइम लगा दें। 3 दफा जो बंदा ये कहे कि मैं अपना टाइम आपको दे रहा हूं और फिर सारा टाइम खुद ले जाए, उसकी आप नीयत, उसके खुलूस और उसकी सच्चाई पर यही दलील काफी है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब से हमारी बात शुरू हुई है, दावा इन्होंने किया है। अब चूंकि इनके पास उस दावे की दलील नहीं है, हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब नाइट राइडर, मैं आपके टाइम में बोल रहा हूँ, आपके टाइम में। जी मुफ्ती साहब, पहले तो मैं इनसे माजरत करूं कि मुझे नहीं पता था कि टाइम टू टाइम चल रहे हैं, तो मैं जी बीच में मुफ्ती जो बोला था मैं उसकी पहले माजरत करता हूँ। यार नाइट आ गए, आगे क्या गुफ्तगू करने? वो इन्होंने कोई दलील तो पेश की नहीं अपने दावे के ऊपर, तो क्या अभी वो खलते मबसी होनी है? जी डिबेट हाँ तो जी, खत्म हो चुकी है ना, बस यहाँ ये पर दो खत्म हो बस चुकी। मुफ्ती साहब देखें, मुझे यही मौका दे दें। अगर दलील नहीं देंगे, बात खत्म कर देंगे। दावा तो देखें, ये जो जब से डिबेट हुई है, आप भी नीचे माशाल्लाह सुन रहे हैं। अगर ये कसम खा के कहें इतने मुखलिस और इतने अच्छे बन रहे हैं, तो एक मर्तबा भी, बिल्कुल बिल्कुल हमारा यकीन है, सब कुछ है। लेकिन यहां आकर दावा किसने किया? ये वो बच्चा है जो छोटा सा बच्चा होता है ना, और अचानक फाट निकल जाता है, उस फाट की आवाज से वो खुद रोने लग जाता है। इन्होंने दावा किया है बेदलीला, जैसे आपने हुक्म किया ना, जैसे आपने सारा बताया कि जो दावा बगैर दलील के हो, वो दावा जो है ना, वो गटर में डाल दिया जाता है, वो दावा कुछ भी नहीं होता। इन्होंने दावा, अब ये अपनी जान छुड़ा रहे हैं कि मेरे से पूछे ना। हम यहाँ ऐसे नहीं बैठे हुए, आपसे बहुत बहुत शातिर लोग आते हैं। आप अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज समझ रहे हैं ना, आप जैसे हमने वाकई ही गर्दन से बांध के किले के साथ बांधा है उन्हें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात इतनी है कि या तो माजरत करो, कहो मेरे पास दलील नहीं है, तो अगले लम्हे इंशाल्लाह दलील मेरी तरफ से आएगी कुरान की। पहले अपने दावे को से पीछे हटो या उसकी दलील दो, इस तरह होगा। दावा किसने किया है? आपने, हमने नहीं किया। आपने दावा किया और अपनी तरफ से कह दिया हर मुसलमान हर मुसलमान हर मुसलमान का ये बिलीव होता है। भाई यहां आके दावा कौन कर रहा है? फाट करके डरो नहीं, उसी अपनी आवाज से। माशाल्लाह ठीक है, माशाल्लाह, आपके 2 मिनट दलील पूरे दो। हो चुके ठीक है, हैं। अब और मुफ्ती साहब ये मौलवी दलील नहीं साहब, देगा आपके तो 2 बात मिनट नहीं। कंप्लीट ठीक है, हो चुके हैं, आपके हाँ 2 बस मिनट ठीक है, कंप्लीट हो चुके हैं। दलील दें, दलील अभी दें। आप भागेंगे, अभी आप हाँ, नीचे उतारेंगे। जो मौलवी दलील साहब का दिए मैं फैन हो बगैर चुका हूँ। भागेगा वो तो मौलाना चल जाएगा, साहब, आपके वो मौलाना तो साहब, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। आप जितने भी मौलाना लोग हैं, आपने दलील जो दो, मुसलमानों दलील को दो, चूरन दलील भेजी दो, है, आप यार 2 मिनट दलील बाद साहिल दो, कंप्लीट नीचे करना। उतार दे दलील दो। यार ये इसको। 2 मिनट, बकवास नहीं हाँ चलेगी, नीचे उतारे, ये माशाल्लाह। बकवास साहिल नहीं, नीचे नहीं, नीचे उतार कोई नहीं दे, कोई उतारेगा। नहीं बकवास नहीं, नहीं। नीचे नहीं उतारेगा कोई। और रहने दे यार, क्या यार नाइट राइडर बच्चों हाँ वाली नहीं बात देखिए, नहीं, कर तो रहे उसके हो। ये दलील जलील दे हो भी रहा है नहीं ना, सके। हाँ, जलील दलील हो वो रहा है दफा दे ना, नहीं कर, होने सके। दे। दफा कर, बहरहाल चलें, हाँ। ठीक है, ठीक है, उतार दिया, ये इसी अच्छा जी, काबिल था। अच्छा जी। अभी हाँ, वैसे अभी ये देखिए, ये कह रहा था, चूँकि वो अब एक बात थी, उस बात में मैं अब थोड़ी सी गुफ्तगू कर दूं। जो ये बार बार कह रहा था ना कि उस पर दलील, पहली बात ये है, इन्होंने जो बात की थी उस पर ये कोई दलील पेश नहीं कर सके।
میں نے پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ کی ہے کہ قرآن پاک صرف کتابی صورت میں نہیں، حالانکہ اب کتابی صورت میں بھی قرآن پاک کے محفوظ ہونے کے ہمارے پاس اب کتابی صورت میں بھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے نسخے اب ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، 2 نسخے مکمل نسخے ہیں، تو بہرحال کتابی صورت بھی اب ہمارے پاس ابھی موجود ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ قرآن پاک سینہ بسینہ بھی منتقل ہوا، جو آج بھی پلینٹ ارتھ پہ ہزارہا لوگ موجود ہیں جن کا شجرہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، جو قرات عشرہ کے قاری ہیں، 10 معروف طریقوں سے جو پڑھا گیا قرآن پاک ہے، جس کا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، جو میرے استاد ہیں ان کے پاس ان کا نسخہ، ان کا شجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے 10 معروف طریقوں سے قرآن پاک پڑھنے کا۔ اچھا، اب دوسری بات یہ کہ جو یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے یہ تو اس بات پہ کوئی دلیل نہیں دے سکے، لیکن قرآن پاک اس بات پہ بہت واضح ہے، قرآن کے دلائل ہے کہ قرآن پاک میں تبدیلی نہیں، جس میں جیسا کہ قرآن پاک میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اس ذکر کے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں ہے وَتَمَّتْ کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات اللہ، چونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ تبدیلی کا جو ان کا لفظ تھا نا، وہی الفاظ قرآن کے ہیں، اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے ساتھ مکمل ہو گیا، کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ پھر وہ بھی اس کے علاوہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں۔ تو یہ تھا کہ اللہ کا یہ کلام ہے، تو اس پہ قرآن کی آیت ہی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ مجھے شک ہے اور وہ قرآن پہ شک کر رہے تھے، تو قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، میں نے کہا چونکہ وہ سوال ہو رہا تھا میں اس کا جواب دے دوں۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے اعتراضات پہلے بھی بڑے ہوتے رہے، تو آج بھی آپ نے نمونہ دیکھ لیا ہے۔ تو بس بات یہی ہے ان ملحدین سے کہ اعتراض کرو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم جواب دیں گے، لیکن اعتراض کا جو سولڈ قسم کا اعتراض ہونا چاہیے، اعتراض دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر دلیل کے نہیں۔ یہ تو وہی ہے آٹا گندی پئی ہلدی کیوں ہے پئی، ہاں جی بھائی، آٹا جب گندے گی تو وہ ہلنا تو پڑے گا نا۔ تو ایسے اعتراض کرنا، یہاں شروع سے شروع کر دو بسم اللہ سے والناس تک، کسی ایک جملے کے اندر، ایک لفظ کے اندر، ایک حرف کے اندر، ایک زیر زبر کے اندر تمہیں کوئی اختلاف ہے تو لے آؤ، پیش کرو نا، دلائل پیش کرو۔ 1450 سال تقریباً ہو گئے ہیں قرآن کو کے نزول ہوئے، آج تک کوئی ایک زیر زبر کے اختلاف پیش نہیں کر سکا۔ او بھائی، تم ایک پہلے اور آخری تو نہیں ہو ملحد کہ جو مطلب یہ اعتراض کر رہے ہو، بڑے ہزاروں کی تعداد میں ابھی بھی دنیا میں موجود ہے، اور ہزاروں لاکھوں مر گئے ہیں، لیکن وہ صرف تمہارے طریقے سے اعتراض ہی کرتے رہے، دلیل نہیں لے کے آئے، آج تک نہیں لے کے آئے۔ بھائی دلیل کا جواب ہم دلیل سے دیں گے، اعتراض کرنا کون سا مشکل ہوتا ہے؟ اعتراض کرنا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں آپ کے اوپر ہزاروں اعتراض کر سکتا ہوں بغیر دلیل کے، ہاں جی، میں کہتا ہوں آپ ولد الحرام ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے، کیا مان لیں گے آپ میرے اس اعتراض کو؟ بھائی میں نے آپ کو کہا تم ولد الحرام ہو، تو آپ مجھے عدالت میں نہیں گھسیٹیں گے کہ بھائی اس کو کہے کہ دلائل پیش کرے، نہیں تو اس کو سزا ملے، ہاں جی، یہ عجیب بات ہے۔ تو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے، اور بغیر دلیل کے جو دعویٰ ہوتا ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی نہیں سمجھا جاتا۔ میں کہتا ہوں آپ کی امی جان جو ہے نا، وہ محلے کی وہ ہے، دلیل نہیں ہے میرے پاس، اس کو گالی سمجھا جائے گا نا۔ تو یہ ایک گالی ہوتی ہے، بغیر دلیل کے کوئی بات کی جاتی ہے وہ گالی ہوتی ہے، بہتان ہوتا ہے، الزام ہوتا ہے۔ تو دعویٰ جب تم کر رہے ہو، میں نے خود سنا ہے، تم نے 2-3 دفعہ کہا کہ بھائی میرا یقین ہے، 100% میرا یقین ہے کہ قرآن تبدیل ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے
भाई आप अपने दावे के अंदर आजाद है, कर सकते हैं, लेकिन इसकी दलील क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर कौन सी तब्दीली हुई है बताएं? सूरह फातिहा पढ़ लो, क्या इसके अंदर कौन सी तब्दीली है? सूरह अल बकरा पढ़ लो, इसमें कौन सी तब्दीली है? वन्नास तक पूरे कुरान के अंदर से कोई एक लफ्ज हरफ लेके तो आओ, दलील तो पेश करो, फिर उसका जवाब देते हैं हम। जब दलील ही कोई नहीं है तो किस चीज का जवाब दें जी हम? क्या तुम एक वाहिद 1400 1450 सालों में एक पहले बंदे आए हो कि जो ये इतराज कर रहे हैं? ओ भाई, हजारों पहले भी गुजर चुके हैं, हजारों अब भी मौजूद हैं, और क़यामत तक कैसे मोतारेजीन रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ मोतारेजीन ही होंगे, बेवकूफ किस्म के, जाहिल किस्म के और पागल किस्म के। दलील के साथ इतराज करो और जवाब ले लो जी, करें बात जनाब। जी जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। और मुफ्ती साहब ये भी बात है कि हमने ये शुरू में आए तो हमने इनके सामने ये सवाल रखा, इन्होंने कहा जी मैं हदीसों को नहीं मानता। तो हमने इनके सामने ये सवाल रखा, ठीक है आप हदीसों को नहीं मानते तो आप कुरान पाक को किस सोर्स से मानते हैं? आपका सोर्स क्या है कुरान पाक? वो नहीं बताया। ये बारहा पूछा है कि आपके पास कुरान पाक कैसे पहुंचा? इंसानों के ज़रिए पहुंचा। वो कौन से? सहाबियों। कहते हैं जी वो सहाबियों के ज़रिए पहुंचा। फिर हमने कहा अच्छा सहाबियों के ज़रिए जो कहते हैं जी वो मैंने सुना है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़रिए वो पहुंचा, वो उनके दौर में लिखा गया बाद में। तो हमने इन्हें कहा कि आप हमने वो फिर घंटे के बाद कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता। पहले इन्होंने हमें कहा कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़रिए हम तक पहुँचा, मैंने ये सुना है। तो फिर बाद में कहा कि लेकिन मैं इस बात को मैं नहीं बिलीव नहीं करता। तो हमने फिर इनसे पूछा भी आप क्या बिलीव करते हैं? वो भी नहीं बताया। कोई आधा घंटा पूछते रहे हैं भाई ये तो बता दो कि फिर हम पहुंचा क्या? इंसानों के ज़रिए पहुंचा। कौन से इंसानों के ज़रिए पहुंचा ये नहीं पता, बस ये बता इंसानों के ज़रिए पहुंचा। वो हो सकता है सहाबी हो सकता है कोई और लोग हो। ये दलीलें दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे सवालों के जवाब ही नहीं, और ये दलाइल है इनके पास। हो सकता है पहुंचा, हो सकता है, ये मजहूल बातें हैं जी इनकी। मुल्हिद इंसान है। वो खुसरो कज़ाब के हदीस पर बात तो बाद में होगी, कुरान पे कर रहे हैं ना। कुरान को जब नहीं मार रहे तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल बात होती है ना। अब कुरान जो है ना वो अल्लाह का कलाम है, ठीक है। अल्लाह का कलाम के अंदर जब ये इतराज कर रहे हैं, यकीनी सी बात है ये फिर अल्लाह पर भी इतराज करते होंगे, ठीक है। अल्लाह को ये कैसा मानते हैं? अभी इनसे बहस शुरू होती तो इन्होंने अल्लाह को भी नहीं मानना था। ये मुल्हिदीन लोग हैं, इल्हादियत के पैरोकार हैं। तो ये कोई बात करना तो मुफ्ती साहब 2-2.5 घंटे के बाद इनसे हमें ये पता चला है कि इन्होंने कहा कुरान में भी मेरा शक है, और फिर यकीन हुआ है। पहले तो 2-2.5 घंटे हमने ये निकलवाने के लिए इनसे लग गए कि इनका कुरान पे भी डाउट है। बैठ के काफी देर का सुन रहा था, ये मुल्हिद आदमी है, ये ऐसे ही होता है। खुसरो कज़ाब पीर साहब, मुफ्ती साहब खुसरो कज़ाब के मानने वाले, खुसरो कज़ाब के, वो शेख खुसरो कज़ाब है ना उसके। मुफ्ती साहब एक देखिए, ये जो हमारे दोस्त नीचे बैठे माशाल्लाह, तो इनको हमारे साथ होते हुए काफी अरसा हो गया दोस्तों को। वो समझते हैं कि अगर कोई आता है तो कुछ पर्दों में आते हैं ना जो लोग, उनको हमें नंगा करना पड़ता है, उनके पर्दे हटाने पड़ते हैं। साहिल भाई ने इसका पर्दा हटाया, इससे सारी बात की। अब लोग इरिटेट होते हैं ना जब वो यहाँ आते हैं एक चलाक लोमड़ी बन के। जब उनके कपड़े थोड़े थोड़े करके उतरना शुरू होते हैं ना तो फिर वो इरिटेट होने लग जाते हैं। जब साहिल भाई ने एक एक पर्द खोलना शुरू की ना तो उसको बड़ी तकलीफें हुई, ठीक है ना। अच्छा, अब उसको यही समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरी बुनियाद और मेरी जड़ों तक पहुंचना है इन्होंने, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मेरे से भी बात शुरू हुई। 2 घंटे बाद ये आखिर इसके मुंह से निकल आया जी मैं तो कुरान को समझता हूँ कि कुरान जो है उसमें तब्दीली हो चुकी है। अच्छा, अब इसने सवालात किए, ठीक है। आप माशाल्लाह साहिब इल्म है, हम तो आपके स्टूडेंट की तरह हैं। कुरान को कमेंट्री समझता है ना उसकी बेवकूफी है। जो कुरान को कमेंट्री समझता है, कुरान कमेंट्री नहीं है, कुरान एक टेक्स्ट बुक है। कुरान ने बताया जैसे अल्लाह तबारक व तआला कमेंट्री उतार देता,
پھر نبیوں کی ضرورت نہ رہتی. اللہ نے پھر انسان یہ کہتے کہ ہم یہ جو باتیں یہ جو ہمیں بتایا نا 5 وقت کی نماز پڑھو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو بتایا نا پورا پورا دن بھوکا رہو اور گرمیوں میں کام بھی کرو اور روزہ رکھو, ٹھیک ہے, صبح صبح اٹھو راتوں کو کھڑے ہو, یہ تو ایک انسان کر ہی نہیں سکتا. پھر اس بیوقوف جاہل انسان نے یہ سوالات کرنے تھے کہ اللہ تو نے یہ ہمیں پوری کمنٹری اتار دی, ایسے زندگی گزارو, ایسے کرو تو ہاں یہ تو انسان کر ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیکسٹ بک اس لیے اتاری کہ کمنٹری کرنے والا ساتھ دیا, اتارا, اس نے کر کے دکھا دیا ایسے کرو. اس نے قرآن وہ کہاں سے آیا؟ وہ اللہ کی طرف سے آیا. اللہ ہی نے اس کو وحی کے ذریعے بتایا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے, اللہ ہی بتا رہا ہے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں مجھے قرآن ہی میں چاہیے تھا, تو یہ اس کی جہالت ہے, یہ اس کی بے وقوفی ہے. قرآن ایک ٹیکسٹ بک ہے, اس کی کمنٹری انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے, بلکہ پریکٹیکل ہیں اس کا, جنہوں نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا. اب جو احادیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کے اندر نماز کا طریقہ ڈھونڈتا پھرے, جیسے مرضی پڑھ لے, اللہ قبول کرے گا, اس کی مرضی ہے, نہیں کرے گا تو واپس منہ پہ مار دی جائیں گی. اتنا ہے جواب ان کا. جزاک اللہ جی. اور بالکل نائٹ رائڈر بھائی آپ نے درست بات کی کہ اگر یہ ہوتا کہ قرآن پاک میں ہی ہوتا تو پھر یہ اعتراض ہوتا کہ وہ تو قرآن پاک میں لکھ دیا نا, کوئی ایسا تو ہوتا نا وہ اس طرح کر کے تو دکھاتا نا, پھر تو ہم مانتے. انسان کے تو بس میں ہی نہیں اس طرح کرنا. بھوکا رہ کے دکھا دیا, پیٹ پہ پتھر باندھ کے دکھا دیے, جنگوں میں مٹی اٹھائی, پتھر اٹھائے, مسجد بننی ہے اس کے لیے پتھر اٹھائے, جنگوں میں جا کے لڑے, اپنے اوپر زخم کھائے. یہ اللہ نے انبیاء اس لیے اتارے کہ اس قرآن کی جو تفسیر تھی, اس قرآن کا جو میسج تھا وہ پریکٹیکل کر کے دکھا دیا. اور بے وقوف ہیں انسانوں, جس کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیا وہ تب بھی نہیں مان رہا, تو اب اس کو کیا, وہ پھر کیا مطلب اللہ دکھائے گا یہ ہے جہنم, وہ جہنم میں اتارا بھی جائے گا, اللہ کہتا مانا ہے, نہیں میں نہیں مانا. یہ وہ لوگ ہیں. باقی مفتی صاحب تشریف فرمائے تو ابنگ بھائی آپ بات کر لیجئے گا, بعد میں ہم مفتی صاحب سے گزارش کریں گے کہ مفتی صاحب آپ بتائیے گا یہ جو تحریف کا اس نے بات کی ہے, اپنی علمی جو ہے نا ایک اس سے ہمیں نوازیے گا کہ قرآن میں تحریف بالکل نہیں ہے, بلکہ قرآن چیلنج کرتا ہے. چیلنج جو کرتا ہے نا اس میں تحریف نہیں ہوتی, ورنہ وہ چیلنج نہیں کر سکتا. جی ابنگ بھائی کر لیں اب بات. السلام علیکم. اچھا میں کافی دیر سے سن رہا تھا, ماشاءاللہ آپ بھائیوں نے بالکل اسے بے نقاب کیا. وہ سب سے پہلے تو وہ قرآنسٹ کے لبادے میں آیا, اور بعد میں آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہ منکر قرآن بھی ہے, اور صرف منکر حدیث نہیں ہے, مطلب کافر ہے پکا. اچھا, اور دوسرا اس کا مقصد تھا کہ وہ صرف کویشچن تھرو کر رہا تھا اور جواب دینے نہیں دے رہا تھا. آگے سے اگر جواب دینے لگتے تھے تو وہ صرف شک ڈالنے آیا تھا مسلمانوں کے دلوں میں, جیسے وہ قرآن پاک میں ہے نا کہ یہ شک ڈالیں گے جو خناس ہیں انسانوں میں اور جنوں میں, ان میں سے یہ ایک تھا. جواب دینے نہیں دے رہا تھا اور ٹرائی کر رہا تھا کہ خناس وہ چھپے ہوئے, وہ بھی بات بالکل ٹھیک, جی وہی چھپے ہوئے. ہاں, یہ صرف تھرو کرنے آیا تھا کویشچنز, اور تھرو کر رہا تھا اور کویشچن آگے سے آنسر نہیں کرنے دے رہا تھا. نہیں, اور اسے آنسرز پتا تھے. وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے پتا ہے آگے سے تم یہ جواب مجھے پھنساؤ گے اگر میں یہ جواب دوں گا, تو کیونکہ اسے پتا تھا کہ جو اس کا آنسر ہے نا اگر میں نے دے دیا تو میں پھنس جاؤں گا, اس کا بھی اسے یقین تھا. اچھا, اور دوسری بات یہ, آپ بھائیوں نے ماشاءاللہ ساحل بھائی نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جن میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ لا ریب ہے. اگر تو کوئی قرآن پاک پہ یقین رکھتا ہے تو اس کو تو یقین رکھنا چاہیے قرآن پاک کی آیات پہ بھی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی. اور جو منکر قرآن ہے ان کے لیے قرآن پاک کے باہر سے بہت ساری کیا اس کا نام ہے نشانیاں ہیں, جیسا کہ آرکیالوجیکلی الحمدللہ یہ ثابت شدہ ہے کہ قرآن پاک میں تحریف نہیں ہوئی, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں تحریف ہوئی ہے, وہ جو ساحل بھائی نے سوال اٹھایا تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ قرآن پاک کی کسی آیت میں یہ تبدیلی ہوئی ہے تو ہمیں پھر اصل لا کے دکھاؤ, کہ اصل جو ہے اس کی جو اصل جو نقصہ ہے نا وہ لا کے دکھاؤ, اس کے ساتھ ہمیں ٹیلی کر کے دکھاؤ کہ یہ اصل تھا تو یہ تبدیلی کر کے یہ ہوا ہے. اگر تمہارے پاس اصل نہیں ہے تو پھر, اور قرآن پاک پوری دنیا میں یہ ایک ہی ٹیکسٹ ہے, ایک ہی مطلب لفظ و لفظ سیم ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں الحمدللہ تبدیلی نہیں ہوئی. یہ دو جو دلائل ہیں نا یہ قرآن پاک کے باہر سے ہیں, کامن سینس کے دلائل ہیں, اور جو قرآن پاک کے اندر ہیں وہ الحمدللہ ساحل بھائی نے ماشاءاللہ
दलाइल दिए हैं, और वो तो जो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पे यकीन रखते हैं, इवन हदीस पे नहीं भी रखते, उनके लिए भी काफ़ी है कि कुरान पाक में तब्दीली नहीं हुई। और हदीस पे यकीन रखना है, उसके लिए भी कुरान पाक के अंदर आयात हैं कि तुम लोग अगर आपस में तुम लोगों का कोई किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाए तो तुम लोग अपने फैसलों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लौटाओ। अल्लाह की तरफ लौटाना मतलब कुरान पाक की आयत, और रसूल की तरफ लौटाना मतलब अहादीस। ये भी एक हवाला है मतलब अहादीस का। जज़ाकल्लाह। अच्छा, गुजारा ये है कि इस मौजू के ऊपर इंटरनेट के ऊपर बड़ा मवाद है। एक वेबसाइट है ilhad.com, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं, तौहीद.com भी है, वो भी आप देख सकते हैं। ilhad.com है, वो देख सकते हैं। तो इन एतराज़ात के बड़े तफसीली जवाब दिए जा चुके हैं, अकली और नकली, क्योंकि ये मुल्हिदीन जो होते हैं वो नकल को नहीं मानते, अकल को मानते हैं। तो वहाँ पे आपको अकली जवाबात मिलेंगे, ठीक है। तो रही बात ये कि कुरान पाक के एक मुसलमान के लिए जो हुक्म है वो ये है कि अभी आप कुरान खोलते हैं तो वो क्या कहता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अभी कुरान खोला है, बिल्कुल खोला है, तो एक मुसलमान को हुक्म ये है कि ये वो किताब है कि इसके अंदर शक की कोई गुंजाइश है ही नहीं, कोई शक नहीं है। ला रैब फीह, कोई शक नहीं। और ये ला रैबा जो है ना, ये लाए नफी जिन्स है, यानी दुनिया के हर किस्म के शक की नफी करते हैं। कोई छोटा शक हो, बड़ा शक हो, बिल्कुल खफीफ सा कोई शक हो, हर शक की नफी कर रहा है, क्योंकि लाए नफी जिन्स है। पूरी जिनसियत की, तमाम शकूक और शुबहात की जो जिनसियत है उनकी नफी कर रहा है। ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं। ये वो ही लाए नफी जिन्स है जो इलाह की नफी करता है। ला इलाहा, कोई इलाह है ही नहीं। पहले तमाम खुदाओं की नफी करो, उसके बाद इस बात करो एक खुदा की, इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह है एक। ये वो ही लाए नफी जिन्स है, ला रैब फीह, इसके अंदर कोई शक है ही नहीं किसी किस्म का। तो ये साहिब कह रहे थे जी मैं मुसलमान, भाई मुसलमान नहीं है आप। जिसको कुरान के अंदर शक आ गया वो मुसलमान नहीं है, ठीक है। तुम आप जितना मर्जी कहते रहो कि मैं मुसलमान, नमाजें मैं 5 टाइम की पढ़ता हूँ, मैंने हज किए, ज़कातें दी, रोजे रखता हूँ, दाढ़ी मैंने रखी है, पग मैंने बांध दी है, तकरीरें मैं करता हूँ, जो मर्जी कहते रहो, मुसलमान नहीं हो तुम, क्योंकि तुमने कुरान के अंदर शक कर लिया है ना। जो शक करता है कुरान के अंदर वो मुसलमान नहीं है, वो मुस्लिम नहीं। ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन, और कहा कि ये मुत्तकीन के लिए हदायत का बायस है, सिर्फ मुत्तकीन के लिए। और मुत्तकीन कौन से हैं? मुत्तकीन कौन से? उनके फिर आगे 5 सिफतें अल्लाह बयान करता है, 5 सिफतें उसने बयान की हैं। और उन मुत्तकीन की पहली जो सिफत बयान की है अल्लाह पाक ने वो यही है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब के ऊपर ईमान लाते हैं। पहली सिफत है ये। अभी कोई नमाज नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई ज़कात नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई इबादत नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ गैब के ऊपर ईमान लाना है। ये पहली सिफत है। नमाज की बात तो बाद में आई है, व युकीमून अस्सलाह, नमाज को कायम करते हैं, ये बाद में। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं, ये चीज बाद में। सदका खिरातें बाद में, नमाज रोजे बाद में, ये हज ज़कातें बाद में, सब कुछ बाद में। सबसे पहले ईमान लाना गैब के ऊपर। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब,
गैब के ऊपर ईमान लाते हैं। अब ये गैब है कि ये कुरान पाक पूरे का पूरा गैब है। अगर इस पर ईमान नहीं लाएंगे हम तो हम मुसलमान नहीं है। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना यह गैब है। भाई हमें क्या पता कि वो अल्लाह के नबी हैं कि नहीं, गैब है ना। ये तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, उनकी जबान मुबारक के ऊपर हमने यकीन कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं और आखिरी नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, ला नबी या बादी। हमने यकीन कर लिया, ये गैब है ना। उन्होंने ही फरमाया कि ये जो कुरान है ये अल्लाह का कलाम है, हमने यकीन कर लिया। जिनको बाद में 30 पारों के अंदर तकसीम किया गया, 31वां पारा कोई नहीं है, 32वां पारा कोई नहीं है, ये 30 पारे ही है। शुरू जो होता है वो बिस्मिल्लाह से शुरू होकर के वन्नास तक। सीन इसका आखिरी हरफ है और इब्तदाई हरफ बा है। हाँ, इसके दरमियान से एक लफ्ज, एक हरफ, एक नुक्ता, एक जेर जबर कोई गायब नहीं हुई, ना ही कोई इजाफा किया गया। ये गैब है, सब कुछ गैब है हमारे लिए। इस पर ईमान लाना ही लाना है। नहीं लाएंगे मुसलमान नहीं। वो अपने तई जितना बड़ा मर्जी मुसलमान बने, मैं मुसलमान हूं, मैं बहुत मुसलमान हूं, बड़ा बड़ा नहीं हो तुम मुसलमान, झूठ बोल रहे हो। अच्छा, ये भी एक दावा है ना, दावा है कि मैं मुसलमान हूं और दलील उसके पास कौन नहीं है अपने मुसलमान होने की। हम मुसलमान हैं, हमारे पास दलील है कि हम गैब के ऊपर ईमान लाते। जब के तूने अपने अमल के जरिए दलील दे दी कि तू गैर मुस्लिम है, तू उसके अंदर गैब के ऊपर ईमान नहीं ला रहा, तू शक कर रहा है कुरान के अंदर। अल्लाह तो कह रहा था ला रईबा फी, और तू कह रहा है कि रईबुल फी। तू ये कह रहा है कि जालिकल किताबु रईबुल फी। तू उल्टा मतलब ले रहा है, जबकि अल्लाह तो ये कह रहा था कि ला रईबा फी, कि इसमें कोई शक नहीं है। तू कह रहा है रईबुल फी कि इसमें शक है। बात किसकी मानी जाएगी? तो बात ये है कि ये लोग गैर मुस्लिम हैं, ये मोतारजीन, ये वो जैलसी लोग हैं, ये यहूदो नसारा, ये हिंदूज, जितने भी गैर मुस्लिम्स हैं, ये इस्लाम की हकानियत के ऊपर इनको जो है ना वो अटैक इस वजह से करते हैं कि ये जैलसी हैं, ये गलबा इस्लाम से जेलस होते हैं कि इस्लाम का जो गलबा हो रहा है और मुसलमान जो गालब हो गए हैं और पूरी दुनिया में छा गए हैं, तो इनके अकायद और नजरियात को डैमेज करो, इनके अंदर शकूक और शुबात पैदा करो, इनके ज़हनों को मुतजलजल करो, जबकि कर नहीं सकते। जितना मर्जी जोर लगा ले, जोर लगा के देख लो, जाओ अपने तमाम अलाओ लश्कर ले आओ। हाँ जी, नहीं कर सकते, तुम कभी भी नहीं कर सकते। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, तुम किसी सूरत में नहीं कर सकते। जाओ, ये कुरान का चैलेंज है, तोड़ के दिखा दो। जब कुरान ये चैलेंज कर रहा है कि ला रईबा फी, और नहीं कर सकते तुम शक, और तुम नहीं एक नुक्ते पर शक नहीं कर सकते। अगर है दलील तो ले आओ, बात कर लो। तो अभी ये जो आए थे मुल्हिद साहब, उनसे यही बात हो रही थी। हाँ जी, यही बात हो रही थी। कोई उनको बार बार कह रहे हैं कि भाई दलील दे दो, नहीं दे रहे। आगे से बातें बना रहे, हंसी मजाक कर रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, जुगते मार रहे हैं मरासियों की। तो बस यही है भाई, जब बात दलील नहीं होगी तो पीछे जुगतबाजी बजती है, गाली गलोच बजती है, तमस्खुर बजता है, दंदियां निकालनी बजती हैं। बस तो वो निकालते रहो, इसमें हमारी सेहत पे कौन सा फर्क पड़ना।
पहले भी बड़े आए हंसने वाले, मर गए, उनका नाम तक नहीं है। तुम भी हंसते हो, हंसते रहो, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा अपना मुंह है भाई, अपने मुंह से हंसी करो जितनी मर्जी करो। हाँ जी, जुगतबाजी करो जितनी मर्जी करो, वेले हो तुम, करते रहो, हमें क्या फर्क पड़ना। जी कर लें बात। आबिद आए, आबिद आए, आबिद आप इसके ऊपर रोशनी डालें, आबिद भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तमाम बहनों और भाइयों को और ख़ासकर मुफ्ती मुबशर साहब मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ये जो कहते हैं इनका मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और मुफीद बातें की हैं। उम्मीद है कि दूसरे भाई भी इसे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। एक नुक्ता मैं यहाँ पे ये भी बयान कर दूँ कि ये कहते हैं कि अच्छा, जो कुरान का ये लफ्ज़ ऐसे है, इस्तिफ़ादा करेंगे। बाबे इस्तेफाल का खासा है कि उसमें चाहत का तर्जुमा ऑटोमेटिकली पाया जाता है। ठीक है, चाहत का तर्जुमा खुद उसके अंदर इंक्लूड है। तो इस्तेफादा हासिल करेंगे नहीं, इस्तेफादा करेंगे, मतलब ये कि वो फ़ायदा हासिल करेंगे। इस्तेफादा का अपना मतलब ये है कि फ़ायदा हासिल करना। जी करें बात। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने मेरी इस्लाह फरमाई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर फरमाए। अच्छा, एक ये बात की जाती है कि ये जो कुरान का लफ्ज़ आया है कुरान मजीद के अंदर, मसलन मुख्तलिफ़ सूरतों में आया है, जैसे सूरह काफ आयत नंबर 9, काफ वल कुरानुल मजीद, यासीन सूरह यासीन के अंदर आया है, यासीन वल कुरानुल हकीम, सूरह वाक़या के अंदर आया है, इन्नहु ला कुरानुन करीम। तो ये जो लफ्ज़ कुरान आया है इसका मतलब है जी पढ़ना। ये कोई किसी किताब का नाम नहीं है, इसका मतलब है पढ़ना। ये मुल्हद जो है ये बात करते हैं कि इसका मतलब है पढ़ना, यानी कि जहाँ पे भी यानी कि जैसे है इन्नहु ला कुरानुन करीम, बेशक ये कुरान, यहाँ पे वो तर्जमा कर देते हैं कि बेशक ये पढ़ने वाला इज़्ज़त वाला है, तो ये इस तरह करके कर देते हैं, जबकि इसका सबूत कुरान करीम के अंदर ही मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को एक किताब जो है वो कहा है। जैसे सूरह अल इनाम की आयत नंबर 19 है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है वा ओहिया इलैया हाज़ल कुरानो ले उनज़िराकुम बिही व मन बलगा। तो ये यहाँ पे आया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर ये कुरान वही किया गया है। और फिर सूरह अल अराफ के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है किताबुन उनज़िला अलैका फला याकुन फी सदरिका हरजुन मिन्हु लितुनज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मोमिनीन। तो यहाँ पे भी इसको किताब के साथ, यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कुरान आपको वही किया गया है, यहाँ पे किताबुन उनज़िला, जो आपके ऊपर किताब उतारी गई है, और वो किताब कौन सी है? वा ओहिया इलैया हाज़ल कुरान। तो कुरान लफ्ज़, इस किताब का नाम कुरान मजीद जो हम लोग कहते हैं, तो ये कुरान के अंदर से ही साबित है। और फिर सूरह अल आराफ की जो 2 नंबर आयत और तीसरी आयत जो है वो क्या कहती है? इत्तबिउ मा उनज़िला अलैकुम मिन रब्बिकुम, इत्तबिउ, और उसकी आपने इत्तबा भी करनी है जो रब की तरफ से आपके पास आया हुआ है, और वो क्या है? किताब है। और किताब कौन सी है? हाज़ल कुरान, ये कुरान। तो ये जो मुल्हिदीन है वो इस किस्म की वो करते हैं बातें। लिहाजा कुरान पाक के अंदर तो इस चीज़ के हज़ारों सबूत मौजूद हैं कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान नाज़िल किया गया, एक किताब नाज़िल की गई। इसके इतने सबूत मिलते हैं, अगर कोई बंदा कहेगा तो मैं सारी आयत कुरान पाक में से मैं उनके सामने रख दूँगा, लेकिन ये इन्होंने दजलो फ़रेब करना होता है। जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि
इनको ना अकल है, इनको ना कोई मत है। पंजाबी में वो कहते हैं कि ना शक्ल ते ना मत, दोनों चीज़ों इनकी नहीं है। लेकिन ये जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले मैं एक ब्राड को सुन रहा था, तो फिर मुझे वहाँ पे जाना भी पड़ा। तो वो कह रहे थे जी, मुल्हिद बैठे हुए थे और वो कह रहे थे जी आप बताएं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जिस्ट भी करते थे या नहीं, और साबित भी किससे करना है, आर्कियोलॉजिस्ट के इल्म से। तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये जो आप बात कर रहे हैं, मैंने अंबिया का तो नाम नहीं लिया, मैंने बोला चल आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से आप फिरौन को ही साबित कर दो कि फिरौन भी एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। नहीं साबित होता। अगर आप ये जो पिरामिड्स हैं फिरौन के, उनको आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से आप कहेंगे कि ये तो फिरौनों ने बनाए, भाई ये तो कोई भी बंदा बना सकता है। मैं कहूँगा कि वहाँ पे तो कोई डेविड नाम का बंदा था, उसने ये पिरामिड बनवा दिए, तो कैसे आप साबित करेंगे? तो ऐसे तो आप किसी चीज़ को साबित नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने फिर इस बात पे मुझे नीचे उतार दिया और मैं फिर यहाँ पे आया हूँ। तो वहाँ पे अभी भी वो ब्राड लगी हुई है, तो इस बात पे कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सलाम वालेकुम। कोई साथ काबा है, उनकी बात अच्छा, हो रही इसमें मैं एक थी। गुजारिश करूं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ऐसे ऐसी ब्रॉड से ना गुरेज ही किया करें। अब ये टॉपिक है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। ऐसे लोगों के लिए इतना काफ़ी होता है कि जाके अपना इलाज करवा लें। और ये जो आया था बंदा, ये भी वही था। ये सारे शेख खुसरो कज़ाब के जो उससे मुतासिर लोग हैं ना, ये वो हैं कि कुरान पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ। कभी कहेंगे कि वो कोई हस्ती है ही नहीं, कभी कहेंगे कि वो कोई तारीख़ में एक शख्सियत थी। ज़ाहिर है अब इनकार नहीं कर सकते, तो ये कह दिया कि तारीख़ में शख्सियत थी। ये ऐसा सच होता है कि जिस पे मैंने कहा कई दफ़ा ये बात की कि कोई चीज़ें वो हैं जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। नाइट राजा भाई आप वो लगा लें, म्यूट लगा लें। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपको, जी सर आप बात। हाँ, मेरा तो म्यूट ही लगा हुआ है, पता नहीं कहीं और से आ रही होगी आवाज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुफ्ती साहब अगर मैं सवाल एक कर मिनट लूं। अफसल भाई सिर्फ एक सेंटेंस में कहना चाहता हूँ। साहिल भाई, मैं ऐसी ब्रॉडों पे बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन एक हमारी बहन वहाँ पे चली गई हुई थी, उसको उन्होंने यानी कि वो घेरा हुआ था, तो उन बहन की वजह से मुझे जाना पड़ा, तो इस वजह से मैं गया था, वरना मैं ऐसी ब्रॉडों पे नहीं जाता। जी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं बात कर रहा था तो अब दरमियान में फिर मैं कोई और बोला, मैं चुप कर गया। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिस पे आपको पूरी दुनिया में आपको इस पे शहादत तलब ही नहीं की जाएगी कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पर्सनैलिटी थे या नहीं थे। भाई पूरी दुनिया पे आपके पास मुतवातर से ये रवायतें हैं हिस्ट्री से। यार ये किसके, रिजवी साहब, ये आपके पास ये रवायतें मौजूद हैं और तवातुर के साथ हैं, मुसलमानों की भी गैर मुसलमीन की भी। और इस बात पे कि क्या वो एक हस्ती थे या नहीं थे, और ये कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, इस बात का सबूत दो या ये साबित करो। ये भी ऐसा सबूत है कि जिस पे आपको शर्क से गरब, शमाल से जनूब, जहाँ भी चले जाएं आपसे ये शहादत ही नहीं तलब की जाएगी कि कुरान किस पे नाजिल हुआ। अब अगर एक बंदा आके ये कहे भी ये बात साबित करो कि कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, तो हम ये साबित नहीं करेंगे। हम उसे कहेंगे भी जाओ जाके भाई अपना इलाज करवा लो। कोई बंदा कल को कहते आके भी हमें ये साबित करें कि हिस्ट्री में कभी अल्लामा इकबाल थे या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो ये आप साबित करें। हम उसको साबित करेंगे भी, हम उसे कहेंगे भी जाओ यार जाके अपना इलाज करवा लो। और ये ऐसे सवाल पहले भी मैंने कई दफ़ा कहा, ये 5 पढ़ा, 7वीं से फेल, 8वीं से फेल, 10वीं से फेल, ये बंदा कर सकता है। जिसने थोड़ा बहुत भी कोई भी इल्म पढ़ा है ना, वो फिर हिस्ट्री को समझता है भाई हिस्ट्री क्या है। तो अब ऐसे लोगों का क्या जवाब दिया जाएगा जी? तो ऐसे लोगों से ये सर खपाना है, उनको कहना भी जाओ जाके इलाज कर लो। अब ये बातें सोशल मीडिया पे बैठ के हो सकती हैं, क्या किसी जगह पे किसी टीवी चैनल पे कोई बंदा ये बात कर सकता है? नहीं करेगा ना। वो कहेगा यार क्या तुम नॉनसेंस से बातें कर रहे हो। किसी मजलिस में बैठ के ये बात नहीं की जा सकती, सिवाय के वन पढ़ लोग। किसी कोर्ट में ये बात नहीं की जा सकती कि जो हिस्ट्री के प्रूवन फैक्ट्स हैं उनको उन पे कोई बंदा शहादत तलब करेगा।
یہ کوئی شہادت طلب کرے گا کہ یہ بتا دو جی صبح سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اس پہ شہادت طلب ہوگی، سورج ہے اس پہ شہادت طلب ہوگی، سورج ہوتی ہے اور روشنی ہوتی ہے، سورج اس پہ شہادت نہیں دی جائے گی بھی. یہ تو یونیورسل فیکٹس ہے. یونیورسل فیکٹس پہ آ کے لوگ آج کہتے ہیں جی شہادتیں پیش کرو ہمیں. عجیب بات ہے ویسے. جی رضوی بھائی ہیں کوئی اور بھائی کوئی سوال؟ جی میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا. اچھا مفتی صاحب ایک تو سب کو السلام علیکم. اچھا سوال میرا مفتی صاحب یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں ملحد، ان سے گفتگو کے بارے میں، جیسے ایک چیز تو جو شاطمیت کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی کلیئر حکم ہے کہ ان کے ساتھ انڈلج نہ کریں جب تک وہ شاطمیت نہیں کرتے چلے. اس سے پہلے نیت تو یہاں پہ یہی ہے اس براڈ کی کہ جو آ جاتا ہے اسے چلیں کوئی دین اسلام کی کوئی ہدایت کی بات شاید اس کے کان میں پڑ جائے، کوئی سوچ و بچار وہ کر لے. لیکن جو لوگ اس لیول پہ ہوتے ہیں، میں ویسے ساحل صاحب یاد ہے آپ کو میں نے پہلے 15 منٹ میں کہہ دیا تھا اس بندے کو ریموو کر دیں. میں اس کے بعد پھر براڈ سے فزیکلی چلا گیا ہوا تھا، میں نے فون دور رکھ دیا تھا، میں نے نہیں سنا. جب مفتی صاحب آئے ہیں ان کے آنے سے کوئی 2 منٹ پہلے میں نے دوبارہ جوائن کیا. تو وہ واقعی میں حیران ہوا کہ چونکہ میں نے ان کے ساتھ 8-8 10-10 گھنٹے کی سپیسز کی ہوئی ہیں ادھر آج سے 4-5 سال پہلے، تو مجھے بالکل یہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ میں خود مناظر نہیں ہوں ان تقابل ادیان کا، لیکن اس میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ انڈلج نہیں کرنا. اور بندے کا بھی پتہ جاتا ہے 10-15 منٹ میں کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے گفتگو کی جائے. یہ سوال میں کیوں اٹھا رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک ظاہر ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ جو پبلک یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے اس میں سے کوئی ایک آدمی اگر نیگیٹیولی انفلوئنس ہو جائے اس طرح کے دجال سے، تو وہ ہماری جو نیت ہے اس کے فائدے کے لیے دین اسلام کی آبویسلی خاطر تو ہم الٹا اس سے کر دیتے ہیں. ظاہر ہے یہ بڑا نازک کام ہے، اس میں ججمنٹ ظاہر ہے انسان ہے، ججمنٹ میں ایرر ہو جاتی ہے. لیکن اس کا میرے خیال میں تھوڑے سے ہمارے انٹیناز جو ہے نا یہاں پہ، ظاہر ہے ساحل صاحب آپ ہیں یا نائٹ رائڈر صاحب ہیں جو یہاں پہ بڑے اب تجربہ رکھنے والے شخصیات یہاں پہ بیٹھتی ہیں، وہ اتنا ضرور یہ ریڈار ضرور آن رکھیں کہ شاطمیت والا اور یہ جو ملحد ہے کہ ان کو کٹ ڈاؤن کس وقت کرنا ہے. اور اس میں تھوڑا سا اگر آپ آئی وڈ سے کہ پریمپٹیو سٹرائک اگر کریں تو وہ زیادہ بینیفیشیل ہے ان سے کج بیسی سے، کیونکہ در حقیقت یہ عوام کو انفلوئنس کر رہے ہیں. کیونکہ اتنے یہ نہیں تھے، میں 2021 میں جب جوائن کی ہوسٹ کرنے اس وقت اس لیول پہ ضرور ہو رہا ہے. تو یہ مفتی صاحب اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ ان کے ساتھ انڈلج کرنے کی کیا لمٹ ہے؟ قواعد و ضوابط کیا ہونے چاہیے؟ میں نے ایک بات ضرور مینشن کر دوں مفتی صاحب، آپ تو گرو ہیں سوشل میڈیا کے، لاک روم پر کلب ہاؤس پہ ہمارے جو انہوں نے یہ اصول طے کر لیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ایکسپرٹ ٹو ایکسپرٹ مناظرے کرتے تھے، اور وہ کلب ہاؤس میں جا کے سیکیور روم میں، یعنی میننگ کہ وہ 5-6 جو پینلسٹ تھے 2 لوگ اگر بات کریں، یہ 4 کا پینل ہے، 2 دوسری طرف سے کراس، تو 2-3-4-5 جو ہے ان کے جو ایکسپرٹس ہیں انہی کے لیول کے وہ صرف جائیں گے. باقی وہ روم جو ہے وہ پبلک کی تماش بینی کے لیے وہ مکمل طور پر بند ہو گئے. یعنی یہ نہیں کہ نیچے 200 بندہ 300 بندہ 400 بندہ جو ریگولر ہماری سپیسز میں اس وقت بیٹھتے تھے 500-700 بندہ تک ہوتے تھے آرام سے، تو ان کے لیے بالکل وہ جو کام ہے وہ بند ہے. تو یہ آپ جن کو نہیں پتا کلب ہاؤس کا، وہ میں آپ کو انفارم اپ کر دی ہے، وہ بھی اسی طرہ کی بڑی ہائی لیول اپلیکیشن ہے. ان سب سے پہلے وہ آئی تھی کلب ہاؤس، ٹویٹر کی سپیسز، اور یہ ٹک ٹاک تو ظاہر ہوگا اس وقت آبویسلی، لیکن وہ بڑی اتھینٹک اپلیکیشن ہے. اس میں سیکیور روم ہوتا ہے کہ آپ صرف وہی بندہ آتا ہے جس کے پاس اس کا آپ لنک بھیجتے ہیں اس کو. تو مفتی صاحب اس کے اوپر اگر آپ کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اچھا، اس میں پہلے ایک اور بات کلیئر کر دوں، مفتی صاحب نے بھی اس پہ جواب دینا. دیکھیے، ہمیں شروع میں ہی پتہ چل گیا تھا یہ شیخ خسرو قذاب کا فالوور ہے، اور ہم عموماً، آپ سب کو پتہ ہے، عموماً ہم ان لوگوں سے انڈلج نہیں کرتے، بہت کم ہوتا ہے. شروع میں ہی ہم ان سے پہلا ہمارا یہی سوال ہوتا ہے، جس سوال پہ ہی ہم ان کو پھر نیچے اتار دیتے ہیں کہ بتائیے قرآن پاک آپ تک کیسے پہنچا. جس سوال پہ ہم نے شروع میں ان سے لاگ کیا ہوا تھا، تو اس سے آگے کبھی بہت کم ہی ہوتا ہے ہم ایسے بڑھتے ہیں.
तो चूंकि वो एक बात उसने ऐसी कर दी, उस पर फिर हमने कहा भी चलो ठीक है बात, और कोई ऐसी वो उस तरह से ये बात नहीं कर रहा था जिस तरह वो दूसरे ये शेख खुसरो कज़ाब के मानने वाले करते हैं। और बाद में तो वैसे ही वो फंस गया हुआ था उस बात पे, तो इसलिए फिर ये यही था कि लोगों को बता दे। आपकी बात ये दुरुस्त है कि वो ना तो कोई क्वेश्चन करने आते हैं ना समझने आते हैं, सिर्फ वो कुछ क्वेश्चन थ्रो करने आते हैं। वो कौन से क्वेश्चन थे जो वो थ्रो कर रहा था बार बार कि देखो जी कुरान पाक में नमाज का तरीका नहीं है, हज का नहीं, ये इन्होंने इनके 3-4 जो क्वेश्चन है जो इनको चीज़ें बताई हैं वो इनको जहाँ पे भी लोग मिले, इनका ये है कि लोगों के मुसलमान 40-50 हैं, उनके जहन में ये क्वेश्चन आपको जब भी मौका कोई भी आप सवाल करें। अच्छा ये किसकी तरफ से, शायद मुफ्ती साहब की तरफ से आ रही है आवाज़, डबल हो रही है। अच्छा कोई भी सवाल करें ना उसका जवाब इन्होंने ये सवाल उठाने हैं, 3-4-5-6-7 ये सवाल उठाने हैं कि शायद कोई 50-100 में से एक बंदा हो जिसके जहन में डाउट चला जाए। सवाल कोई भी हो, जिसकी कई भी दफ़ा मैंने मिसाल दी है कि हमने एक पॉलिटिकल वो पार्टी की ना एक मीटिंग अटेंड की जिसमें वो जो उनके वो मीडिया पे जो जाते हैं टीवी पे उस पे वो ट्रेनिंग दे रहे थे। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि आपको सवाल कोई भी एंकर ने करना है, आपको पता है कि मैंने कौन से जवाब देने हैं जो आपने पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देनी है। वो जैसे वो भट्टी क्या नाम है, उससे सवाल कोई भी किया जाता है ना, उसने अपने हाथ में एक पर्ची नोट्स बनाए होते हैं, उसने वो अपनी पर्ची सारी सुना देनी होती है। तो ये हिसाब है, आप सवाल इनसे कोई भी करें, इसका मकसद इनका ये है कि इनके जहन में जो इन्होंने पब्लिक को इनको ट्रेनिंग इस तरह की है कि आपने लोगों में बैठ के ये 10 सवाल कोई भी हो, आपने लोगों के जहन में ये 10 सवाल छोड़ के आने, समझे आप कामयाब हो गए। आपने जितनी दफ़ा आपको मौका मिला ये वो सवाल छोड़ने का, आपने वो सवाल छोड़ के आ जाने। उनमें कोई ना कोई 2-4 लोग ज़रूर होंगे जो फॉलो करेंगे आपको, आएंगे पीछे, उनके जहन में ये बात आएगी हाँ यार बात तो उस बंदे ने ठीक की थी, अगर है तो बताओ, अगर उनके पास जवाब होता तो वो दे देते। हम इनसे बहुत कम इंडल्ज करते हैं, शायद ये मेरा ख्याल है पिछले कई महीनों के बाद एक दफ़ा, लेकिन ये नहीं कि इनको छोड़ नहीं देते, कभी कभार इनको ज़रूर इंडल्ज करते हैं और इनकी औकात इनको दिखाते हैं, जैसे आज इनकी औकात दिखाई कि इनके पास है कुछ नहीं। ज़ाहिर है कभी कभी ये भी दिखाना ज़रूरी होता है। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा अफसर साहब गुजारा ये है कि वो है ना कुरान पाक में कि व फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। असल में हमारे यहाँ दिक्कत यहाँ पर ये आ जाती है कि जो हमारे डिबेटर्स हैं ना वो ये शायद कई समझते होंगे कि मैं तमाम सवालात और तमाम एतराज़ात का जवाबात रखता हूँ और मुझे बड़ा इल्म है और तमाम मौज़ूआत की मैं गिरफ्त कर सकता हूँ और हर चीज़ बस पेट दर्द का भी कोई मरीज़ आएगा तो दवाई मेरे पास है, दिल का दर्द है तो वो भी मैं हार्ट स्पेशलिस्ट भी हूँ, आंखों का मर्ज का कोई आएगा तो मैं आई स्पेशलिस्ट भी हूँ, वो भी मुझे आता है। अगर दिमाग का कोई है ब्रेन स्पेशलिस्ट भी मैं हूँ, वो भी मेरे पास इलाज उसका है। तो गुर्दे का अगर कोई आएगा मरीज वो भी मैं स्पेशलिस्ट हूँ, किडनी स्पेशलिस्ट हैं जी। तो अल्लाह इतना इल्म दे तो फिर तो क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। हो सकता है ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। अगर आप ये कहें कि नामुमकिन है कि वो तमाम दुनिया के इतराज़ात के जवाबात उसके आते हों और अकली और नकली जवाबात उसको हिफज हों तो अल्लाह की शान है, अल्लाह कर सकता है। तो वो तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ के ऊपर कादिर है ना, वो कादिर मुतलक है, कर सकता है। लेकिन ऐसा अमूमी होता नहीं है। लिकुल्ली फन्निन रिजाल, हर फन के कुछ माहिरीन होते हैं, वो उस फन को बेहतर जानते होते हैं। यही वजह है कि अगर आप किसी एक दारुल इफ्ता में भी चले जाए ना तो वहां पे मुख्तलिफ टेबल रखे होंगे और मुख्तलिफ मुफ्ती उन्होंने बिठाए होंगे। भाई अगर खरीदो फरोख्त के मसाइल अगर तुमने पूछना है फतवा तो बैअ और शरा का मुफ्ती वो बैठा हुआ है, वो एक्सपर्ट है, उसके पास जाओ। अगर निकाह और तलाक के मुतल्लक कोई सवाल है तो यहाँ पर आ जाओ, ये 2 नंबर टेबल के ऊपर।
यहाँ के मुफ्ती साहब से पूछो, अगर तुम्हें कोई नमाज रोजे इबादत के मुतल्लक कोई सवाल दरपेश है तो इस टेबल पर आ जाओ, ये 5 नंबर टेबल पर। तो एक हालांकि है शरीयत के मसाइल, लेकिन शरीयत के फिर मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट हैं, वो ही बेहतर जानते हैं। अब बैओ शरा वाला, उसके टेबल के ऊपर निकाह और तलाक का कोई सवाल चला गया है और वो मुफ्ती साहब जवाब देना शुरू कर दें तो वो सदर दारुल इफ्ता जो है उसको डांटेगा कि यार जब तेरा ये शोबा ही नहीं है तो तू क्यों जो है तू इस मसले का जवाब दे रहा है। सारी जिंदगी तेरी गुजरी है बैओ शरा के मसाइल बताते हुए, और आज 20 साल के बाद एक तलाक का मसला है तो तू क्यों बताने बैठ गए। यकीनी सी बात है, जिंदगी जिस काम के ऊपर गुजरी है स्पेशल तो फिर उसके अंदर ही बंदा होगा ना। तो ये मामलात हैं कि मौत आरेज़ीन जब आते हैं ना तो वो मुख्तलिफ किस्म के आते हैं। मोतरिज को पहले देखना पड़ता है कि मोतरिज कैसा है, आया ये मोतरिज मुल्हिद है, तो फिर उसके मद्दे मुकाबल ऐसे शख्स को लाया जाएगा कि जो रद्दे इल्हादियत के ऊपर जिसकी ज़िंदगी गुजरी है और वो अकली और नकली जवाबात के ऊपर माहिर है, साइंस के उलूम भी उसको आते हैं तो दीन के उलूम भी आते हैं, फिर ऐसे बंदे को लाया जाएगा। और फ़कत कुरान और हदीस का इल्म भी है और साथ साइंस का इल्म भी उसके पास है, कोई उसने FSc BSc MSc वगैरह की है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो डिबेट के मैदान के अंदर भी वो पूरा उतर सके। ऐसे बहुत से आपको मिल जाएंगे स्कॉलर्स, लेकिन वो डिबेट एक अलग फन, डिबेट करना एक अलग फन। इसी तरीके से मोतरेज अगर कोई क्रिश्चियन है तो यही कायदा कुलिया वहां पर भी अप्लाई होगा कि आया इसको महारत है कि नहीं। अगर मोतरेज हिंदू है तो मद्दे मुकाबल फिर उसका एक्सपर्ट लाना पड़ेगा। अब जैसा कि अभी साहिल भाई ने गालबन कहा है कि वो मोहम्मद शेख जो बनी इसराइल वाला यहूदी है तो उसका ये मुकल्लिद था, अब उसके स्पेशलिस्ट लग गए। तो बात करने के लिए पहले हमें वो एक पैनल बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो बात करने जा रहा है इसके मध्यम का आया उसकी इसके ऊपर महारत भी है कि नहीं, उसके जुमला एतराजात के जवाबात देने की सलाहियत भी इसके अंदर है कि नहीं। अगर ये हो कि एक तरफा गप्पे हो रही हैं, मोतरिज जो है गप्पे हाँक रहे और मुजीब भी आगे गप्पे हाँकने वाले ही आ जाए तो वो फिर तो काम खराब हो जाना, बल्कि काम खराब नहीं काम सही हो गया। हाँ मैं गलत बोल गया हूँ, माजरत नहीं, वो सही हो गया। यानी एक तरफ भी गप्पे हैं तो दूसरी तरफ भी गप्पे हैं, फिर ठीक है, फिर बराबर हो गई है ना। अब बराबर की डिबेट हो रही है। हाँ अगर मोतरेज अपने एतराज के साथ एक दलील भी रखता है तो फिर मुजीब भी ऐसा चाहिए कि जो उसके एतराज के जुमला पहलुओं के ऊपर रोशनी डाले और उसके एतराज का में जो उसने दलील पेश की है दलील का जवाब फिर दलील से दे। ये फिर अब बराबरी की सतह पर डिबेट हो। तो यही है, बस हमें बहरहाल देखना पड़ेगा कि उसके पूरा जो है ना उसका कद काट जांचना होगा। मोतरिज जो आया ये क्या है क्या, जब उसका कद काट आप जांच लें फिर देखें कि आया मैं इसका अहाता कर सकता हूं कि नहीं।
वो हर बंदा जानता है मैं कितने पानी में हूं। अगर आपका दिल अंदर से गवाही दे, इस्तफ्ती भी कल्बिक, अपने दिल से फतवा तलब कर, दिल से पूछें कि मैं क्या आया इसका इहाता कर लूंगा, तो ठीक है, दिल गवाही दे तो फिर तो जुड़ जाओ ना, फिर फट्टे चक के रख दो। लेकिन अगर दिल ही गवाही दे रहा हो कि ना यार तू इसके इतराजात का इहाता नहीं कर सकेगा, तो फिर अपने जगह खाली कर दो, किसी ऐसे बंदे को लेके आओ कि जो उसकी टक्कर का हो। अब बिल फर्ज मेरे सामने कोई साइंस का एतराज करता है, एक ऐसा मुल्हिद आ जाता है जो साइंसी बात कर रहा है, तो मैं तो एक आलम दीन हूं यार, मैं साइंस के ऊपर तो गिरफ्त नहीं रखता ना। तो मुझे फिर थोड़ी देर के लिए नीचे आना पड़ेगा, मुझे ये नहीं देखना पड़ेगा कि मैं मुफ्ती हूं, बहुत बड़ा दुनिया बड़े मेरे डंके बजाती है। ओ भाई मुझे देखना पड़ेगा कि आया तू है भी कि नहीं, तू नहीं दे सकता ना जवाब, तो फिर मद्दे मुकाबल किसी ऐसे बंदे को लेके आ जो साइंटिस्ट है और पक्का सच्चा मुसलमान भी है, उसका अपना अकीदा भी बड़ा कमाल का है, और उसके अकली और नकली इल्म मंतिक, इल्म फलसफा, इल्म बलागत के अंदर वो महारत रखता है, उस बंदे को ले आओ। तो फिर वो मैं ना, फिर मैं क्या करता हूं कि हमारे पास ऐसे कुछ एक्सपर्ट हैं, उनको मैं आगे कर देता हूं। हमारे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर बड़ी दफा हुआ है हमारी लाइव स्ट्रीम जो होती है, वो उमर चौधरी है हमारे पास, इस तरीके से लड़के और भी हैं, काफी हैं, उनको हम ले आते हैं। वो इंडिया के हमारे जीशान, डॉक्टर जीशान है, उनको मैं ले आता हूँ मद्दे मुकाबल कि तुम करो बात, ठीक है। तो ये एक तरीका कार है ना। तो आपको एक पूरी जो है ना वो इस तरह के एक्सपर्ट अपने हाथों में रखने पड़ेंगे, तमाम इतराजात का इहाता करना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मोहतरिस तो चूंकि अब आप ओपन मीडिया पर बैठे हैं, सोशल मीडिया है, आजाद मीडिया है, यहां पर इतराज हर तरह के आएंगे। इतराज करने वाला बेबाक है, वो कहीं से भी इतराज कर सकता है, लेकिन जवाब देने के लिए फिर मैनेजमेंट जो है ना वो जरूरी है। जी अफसल साहब, उम्मीद है समझ आ गई होगी, जो मेरी समझ में आया मैंने वो अपनी नाकस माशाल्लाह, थैंक यू नाकस सर, बड़ी तफसील से रोशनी डाली आपने, थैंक यू थैंक यू। जी मुफ्ती साहब, सूरा अनकबूत की आयत नंबर 46 तो पढ़ दीजिएगा, वो भी इसी से रिलेटेड है। सूरा अनकबूत आयत नंबर 46। मैं हाफिज नहीं हूँ यार, तो अभी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो आप ही कर लें ये। जी चले मैं पढ़ देता हूँ। वाला तो जादिलु अहलल किताब इल्ला बिल्लती है या आसन इल्लल्लज़ीना ज़ालमू मिनहुम व क़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला अलैना व उन्ज़िला अलैकुम व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिदुम व नहनु लहू मुस्लिमून। जी सर। जी तर्जमा इसका वो भी मैं पढ़ देता हूँ कि और अहले किताब के साथ बहस व मुबाहिसा ना करो मगर इस तरीक पर जो उम्दा हो, मगर उनके साथ जो उनमें जालिम है, और साफ साफ ऐलान कर दो कि हमारा तो इस किताब पर भी ईमान है जो हम पर उतारी गई और उस पर भी जो तुम पर उतारी गई, हमारा महबूद एक ही है, हम सब उसी के मुस्लिम हैं, मुस्लिमून मुस्लिम है। जी ये इसका तर्जमा भी है। जी मुफ्ती साहब। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, जबरदस्त हो गया। मुजादला नहीं करना, यहाँ पे आयत यही है ना, वला तुजादिलू, ये यहाँ से शुरू हो रही है ना। जी सर, जी सर। हाँ, मुजादला नहीं करना, लड़ाई, मुजादला लड़ाई, लड़ाई नहीं करनी। तो हमें तो हुक्म है कि बस ये है कि वही बात वही है, जितनी भी गुफ्तगू जितनी भी कर लीजिए कम है, कि
मोतरिज को पहले देखना पड़ेगा, उसके इतराज़ को देखना पड़ेगा, उसकी जहनीत को देखना पड़ेगा, और तमाम चीज़ों को देख करके फिर उसको जवाब दें आप। इतराज़ करने वाले के ऊपर भी गुस्सा नहीं निकालना चाहिए कि भाई ठीक है, उसका एक माइंड सेट है, वो काफिर है, वो मुल्हिद है, वो ईसाई है, वो यहूदी है। दुनिया में कितने मज़ाहब हैं भाई, कितने अदियान हैं, वो कहीं से भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। वो उसका जुर्म यही हो गया है कि भाई कल तक तो उसने अपने दिल के अंदर वो इतराज रखा हुआ था, आज वो ओपन मीडिया पे आके वो इतराज कर रहा है। तो क्या ओपन मीडिया पे आके इतराज करना ये जुर्म है? अच्छा, दिल में रखना जुर्म नहीं है? जुर्म तो दोनों ही जुर्म ही है ना। हाँ जी, तो अगले के इतराज को सुने, कोई मसला ही नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा पाबंद कर दें कि भाई देखो, बात किसी सलीके से तरीके से हम करेंगे, कोई 2 मिनट तुम बात कर लो, 2 मिनट हम करते हैं, मेरी बात में तुम ना टोको, तुम्हारी बात में मैं नहीं टोकूंगा, लेकिन बात जो करेंगे ना दलील से करेंगे। क्या तुम मुत्तफिक हो? अगर तो वो कहता है ठीक है मैं बात जो भी करूंगा दलील से करूंगा, तो फिर ठीक है। अगर बंदा कहता है मैं सवाल लेके आया हूं, तो उसका फिर सवाल ले करके उसको नीचे उतार दे। उसको कहे चले ठीक है आपने सवाल कर लिया ना, अब नीचे बैठ के हमारा जवाब सुनो। तो फिर आप अपना जवाब तफसीली तौर पे दें, कोई मसला नहीं। क्योंकि अगर आप उसको सामने बिठा के उसका एतराज का जवाब या सवाल का जवाब देंगे ना, वो बीच में से निकालेगा, अब डिबेट शुरू हो जाएगी। फिर बेहतरीन तरीका यह है इस मुजादले से बचने के लिए, वला तुजादिलू, मुजादला नहीं करना। तो मुजादले से बचने के लिए यही तरीका है, उसका सवाल सुन के उसको नीचे उतार दे, भाई नीचे बैठ के सुन। हाँ, अगर मुजादला करना है तो फिर सामने बैठा रहे। तो मुजादले का फिर तरीका कार यह कि टाइम तय कर ले हमारे साथ, ठीक है? मुजादले का भी कोई असूल दस्तूर होता है कि नहीं होता? अगर मुजादला करना है तो ठीक है, हमारे साथ उसूलों के साथ मुजादला कर। और ये जो सोशल मीडिया पर मुजादलात ही हो रहे हैं, मुनाजरात नहीं हो रहे। मुनाजरा की अपनी तारीफ है, उसकी अपने शराइत और ज़वाबित है, और उन 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 शराइत के ऊपर तो मुनाजरा हो ही नहीं रहा, पूरी वर्ल्ड में कहीं नहीं हो रहा। अभी मुजादलात ही हो रहे हैं जितने भी हैं, वहां उसको नाम दे दिया जाता है मुनाजरे का या डिबेट का या मुबाहसा का या मुकालमा का, लेकिन होता असल में मुजादला ही है। तो वो दिल को तसल्ली देने वाली बातें हैं ना, वो जो मर्जी फिर बंदा कह दे, है मुजादला ही। तो वो जो फन्नी मुनाजरात है ना, उनका तो दरवाजा बंद हो चुका है एक अरसे का। वो मुनाजरात, उसके लिए तो वो मुनाजरा रशीदिया पूरी किताब है, हमारी दरस नमी में पढ़ाई जाती है। उसके पूरे भाई असूल ज़वाबित है, उन असूल ज़वाबित पे कौन सा मुनाजरा हुआ? नहीं हो रहे। वो मेरे उस्ताद ग्रामी हैं सईद असद साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तो उनके पास हमने मुनाजरा कोर्स किया 1 साल वाला ना, तो यही बात उन्होंने भी बताई। ये बात असल में जो मैंने बताई है, ये उनकी बात बताई है मैंने। उन्होंने फरमाया कि अभी मुजादला तो हो रहे हैं, मुनाजरे नहीं हो रहे, और बात भी ठीक है। सही हो गया, ठीक है यार, करें बात। मैं सुन रहा हूँ कोई मोतरेज आता है तो फिर देखते हैं। कोई एक है ना जगह भी छोड़ दिया करें, एक जगह कम से कम होनी चाहिए ताकि नया कोई कॉलर आ सके। करें बात, मैं सुन रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी सॉरी, मैं कुछ अवे था, कुछ मैं ज़रा मैसेज में देखूँ कुछ किसी ने लिखा तो नहीं। साहिल बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही भाई, बड़ी कम आ रही है। अच्छा, लगता लिहाफ लिया है आपने मुंह के ऊपर। नहीं, वो उसकी आवाज़ ही कम की हुई थी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक्चुअली थोड़ा सा मैं अवे था, सारी गुफ्तगू नहीं सुन पाया। अच्छा जी, क्या मैसेजेस में कोई साहिब या साहिबा ऊपर आना चाहे, कोई सवाल हो तो तशरीफ़ ज़रूर लाएं। मोबाइल हाँ मुनासरा और मुजाजरा में क्या फ़र्क है? मिर्ज़ा साहब को यार मोहम्मद क्यों तंग करता था, क्या कोई और भी तंग करता था उनको? अच्छा, ये अजमत भाई पूछ रहे हैं कि मुबाहला, मुनाजरा, मुजादला में क्या फ़र्क है। अच्छा, ये लफ्ज़ भी गलत लिखा है आपने, उर्दू भी ठीक होनी चाहिए, उर्दू बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मुबाहला ये माजरत ड्राइव कर रहा था, ड्राइव कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, नहीं वो असल में इस्लाह करना अजमत भाई जरूरी होता है कि ताकि दूसरों की भी हो जाए ना, दूसरों को भी हो जाए। तो मुबाहला ये जो है ना, ये वो है दूसरी है। अच्छा, और मुजाजला नहीं, मुजादला। अच्छा, ये है कि मुबाहला तो वो कुरान पाक में भी है ना कि तुम अपने अहले खाना ले आओ, और हम अपने अहले खाना ले आते हैं, और दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर लानत करते हैं। जो सच्चा होगा वो, समझ आई कि नहीं? तो वो उसके वो मुबाहला वो खत्म हो गया। मुबाहला कोई नहीं, बड़ी दूर। मुबाहला वो सिर्फ सरकार ने किया, वो एक ही मुबाहला था, उसके बाद कोई मुबाहला नहीं। पूरी कायनात में कोई मुबाहला ना ही हुआ तो ना ही क़यामत तक होना है। मुबाहला वो बड़ी कड़ी शराइत है भाई, वो नहीं है। अच्छा, मुनाजरा तो यही है कि दलाइल के जरिए अपने अपने दावे को साबित किया जाए। जो मुतकल्लिमीन होते हैं ये असूलों के मुताबिक वो बात करते हैं। मुजादला लड़ाई को कहते हैं, बस लड़ाई, और बीच में बोलना, टोकना, बात को रोकना, बगैर दलील के बात करना, ताबड़तोड़ हमले करना, इसको मुजादला कहते हैं। जो अभी माशाल्लाह हमने देखा है, तो ये मुजादला होता है। मुफ्ती साहब, मैंने ये मुबादला का लफ्ज ये मिर्जा की किताबों में पढ़ा है, जब उसका किसी ईसाई के साथ कोई मुनाजरा था। नहीं, वो ही मैं समझ गया, इसीलिए मैं पूछ रहा था। नहीं, वो मिर्जे कादियानी ने दजल किया ना। मुबाहला आज तक कादियानियों से हम पूछ रहे हैं कि मुबाहला की शराइत क्या हैं, ज़वाबित क्या हैं, वो आज तक नहीं इन्होंने बताई। कुरान ने मुबाहला की शराइत कुछ और बताई हैं, मिर्जा कादियानी किसी और शराइत के मुताबिक मुबाहला करता रहा। वो मुबाहला तो नहीं था ना, वो था इसको नाम मैं एक नया नाम दे दूं, मुचावला कह लें इसको, चवल। पंजाबी में जो चवल होती है ना, चवल, मुचावला कह लें। एक नवा नाम रहा। स्वाद कितना जी, स्वाद कितना जी मुफ्ती साहब। हाँ जी, एक नवा नाम रहा लो। बस पैसे पूरे हो गए ना जनाब। हाँ जी, स्वाद करता जी। कमाल हो गई वैसे मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब, इसकी क्या एक शर्तों में से ये शर्त भी है कि दोनों पार्टियां बाहम मौजूद हों और एक ही बात पे एक दूसरे के मुखालिफ हों। हाँ जी, हाँ वो तो है। ये तारीफ मुबाहला और मुनाजरा दोनों के अंदर चलती है कि हरीफैन अपने एतकाद में मुखालिफ हों। ये दोनों के अंदर ही है ना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और दूसरा ये भी है कि आगे मुबाइला में जाके वो फिर आप अपने जो है वो एक दूसरे के वो जो है अपनी जिस अकीदे के ऊपर कायम है उनके ऊपर वो उसकी तस्दीक करे ज़बान से कि मेरा ये अकीदा है, मैं इसमें सच्चा हूँ, और दूसरी पार्टी कहे कि मैं इसमें सच्चा हूँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ जी। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की इन्होंने बात की अज़मत साहब ने, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने तो ऐसा कोई भी मुबाइला उसका मौजूद ही नहीं है जो इन शराइत के तहत, ये सिर्फ जो दो मैंने बताई हैं इन्हीं शराइत के ऊपर उसका किसी के साथ भी कोई मुबाइला हुआ। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई नहीं, मुबाहला को नहीं हुआ, वो ऐसे ही उसने बस। जी, मुचावले बहुत हुए हैं, मुबाइला कोई नहीं हुआ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। मुचावले सर, मुचावले। मैनू लगता है कि आज तो बाद ना ए लफ्ज़ भी रहे जो जाना है मुचावला।
सबसे पहला मुकाबला उसका पंडित लेख राम के साथ था। एम आई राइट बिल्कुल मुफ्ती जी। साहब? 1888 के अंदर जी जी। 1 साल जिसकी मुद्दत थी, हम्म, तो उसमें भी मिर्जा साहब तो दोनों तरफ से अपने आप को झूठा कहलवाने की बात कर रहे थे कि अगर उसके ऊपर कोई अजाब नाजल ना हो तो फिर भी मैं झूठा, और अगर मेरे ऊपर अजाब नाजल हो जाए तो फिर भी मैं झूठा। तो उसके ऊपर तो कोई अजाब नाजल नहीं हुआ, तो लिहाजा मिर्जा गुलाम कादियानी तो 1888 में ही झूठा करार पाया। अच्छा यार, मैंने ना अभी जाना है, तो मेरे ज़हन में थी एक चीज़ मैंने बयान करनी थी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा कर लूँ थोड़ा सा। जी जी जरूर हाँ, जरूर सर। अच्छा ये तहरीफ कुरान, मैं आपको बताता हूँ तहरीफ कुरान क्या होती है और तहरीफ कुरान किसने की। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 170 के ऊपर, वो कहता है कि हम पुख्ता यकीन के साथ इस बात पर ईमान रखते हैं कि कुरान शरीफ खात्मे कुतुब समावी है और एक शोरशा या नुक्ता उसके शराय और हदूद और अहकाम और अवामिर से ज्यादा नहीं हो सकता और ना कम हो सकता है। ये वही बात है ना जो मैंने बताई थी कि एक नुक्ता, एक हरफ, एक लफ्ज, एक जुमला कम या ज्यादा नहीं हो सकता, है ही नहीं। ये मुसलमान का कीदा है। तो ये मिर्जा कादियानी भी वही बात कर रहा है और बिल्कुल सही बात कर रहा है। ये कायदा कुलिया जो मिर्जे ने बयान किया है ये हमें कबूल है, इसने बिल्कुल ठीक कायदा पेश किया है। आगे कहता है, और अब कोई ऐसी वही या ऐसा इल्हाम मिन जानिबिल्लाह नहीं हो सकता जो अहकाम फुरकानी की तरमीम या तनसीख या किसी एक हुक्म की तब्दील या तगय्युर कर सकता हो। अगर कोई ऐसा ख्याल करे तो वो हमारे नज़दीक जमात मोमिनीन से खारिज और मुल्हिद और काफिर है। तो ये बिल्कुल उसने कायदा सही पेश किया कि वो बंदा मुल्हिद हो जाता है, वो काफिर हो जाता है, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है जो कुरान के अंदर कमी करे या ज्यादती करे। ये बिल्कुल उसका कायदा कुलिया 110% बिल्कुल ठीक है, हम मुत्तफिक है। अब मिर्ज़ा कादियानी ने ये कायदा बना के खुद ही ये कायदा तोड़ भी दिए। अब आप देखिए, मलफूजात है, जिल्द अव्वल है और सफ़ा 444 के ऊपर वो सूरा अल फतह की आयत 29 पेश करता है और कहता है मुहम्मदुन रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना आमनू माहू अशिद्दाउ अलल कुफार। अब यहाँ पे आमनू का लफ्ज इसने इजाफा कर दिया। ये तो होगा ज्यादती। ज्यादती की एक मिसाल मैंने दी है कि कुरान के अंदर ज्यादती कर दी इसने, तो मिर्ज़ा कादियानी तो मुल्हिद और काफिर साबित हो गया। इसको कहते हैं तहरीफ कुरान, इसको कहते हैं कुरान बदल गए है। ये है कुरान बदलना, इसको कहते हैं कुरान बदलना। समझ आई कि? अच्छा, एक मिसाल अब कमी की मैं देता हूं कि जहां पे मिर्ज़ा कादियानी ने कुरान को के अंदर कमी वाक़े कर दी है। ठीक है, कमी की मिसाल अगर सूरा अल हज के अंदर आप जाएं तो आयत 52, तो आईने कमालाते इस्लाम सफ़ा 352 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी इस आयत को उसने पेश किया है। लेकिन वमा अरसलना मिन कबलिका का जो लफ्ज है ना, मिन कबलिका, उसने वो कम कर दिया, वो उसने बयान नहीं किया। और यही आईने कमालाते इस्लाम का हवाला था और यही चीज और यही आयत उसने मकतूबाते अहमदी जिल्द 5 नंबर 4 सफ़ा 55 के ऊपर भी यही आयत सेम कोड की है और यहां पर भी मिन कबलिका को वो खा पी गए। ये है कमी की मिसाल। तो एक हमने आपको मिसाल दी ज्यादती की और एक मिसाल दी कमी की, 2 मिसालें हो गई हैं। ठीक है ना, 2 मिसालें हो गई हैं।
اور ان دو مثالوں سے کم از کم مرزا قادیانی جو ہے وہ محرف قرآن ثابت ہو گیا ہے اور ملحد اور کافر ثابت ہو گیا مفتی اپنے صاحب ہی بنائے. یہ مفتی صاحب یہ زیادتی کی مثال ذرا دوبارہ دے دیے، میں نوٹ کر رہا ہوں، میں نے نوٹ زیادتی نہیں کی کیا. مثال، اچھا زیادتی والی، کمی والی مثال من قبلی کا ہے نا کہ کم کر دیا، تو زیادتی والی مثال جی مفتی صاحب اس میں ایک اور حوالہ بھی لے لیجئے، اوزالہ اوہام جو ہے اس کے اندر بھی یہ ایک جلد منٹ، بند. معذرت یہ ذرا جی ان کو مثال دے دوں. وہ عظمت بھائی ملفوظات جلد اول صفحہ 444 ہے، آمنو کا اس نے اضافہ کر دیا ہے سورہ الفتح کی آیت 29 کے اندر. جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. اگر اس تصویر بڑی کریں گے تھوڑی دیر کے لیے تو میں یہ ریکارڈنگ کے اندر بھی چونکہ آ جائے تو میں دکھا بھی دوں تاکہ تصویر اگر کوئی لینا چاہے تو لے لے. تصویر بڑی کریں گے ساحل بھائی؟ کوئی موڈیریٹر موجود ہے؟ ساحل بھائی لگتا ہے گئے ہیں کہیں. تو بہرحال یہ دیکھیں جی، یہ مفتی صاحب کرتا ہوں. جی آپ دوہرا دیں حوالہ، میں نیچے ٹائپ کر دیتا ہوں سر. ملفوظات جلد ایک ہے صفحہ 444. یہ دیکھیں، یہ بڑا لفظ میں کر دیتا ہوں. چلے یہ دیکھیں آمنو کا یہ لفظ، یہ دیکھ رہے، یہ تصویر اسکرین شاٹ لے لیں نا، اور یہ دیکھیں آمنو کا لفظ اضافہ کر دیں اور ساتھ وہ لکھتا ہے، یہ صورت بھی لکھتا ہے نا. یہ آیت اس نے 30 لکھی ہے چونکہ قادیانی ان کا قرآن الگ ہے، تو ہماری مسلمانوں کے قرآن کی آیت نمبر 29 ہے. اچھا یہ ہے زیادتی کی مثال، اور کمی والی جو مثال ہے وہ یہ دیکھیں سورہ الحج کی آیت 52، اور یہ من قبلی کا یہ یہاں پہ لفظ ہے، اور یہاں پہ یہ دیکھیں آئینہ کمالات اسلام صفحہ 352 اور مکتوبات احمدی جلد پنجم نمبر 4 اور صفحہ 55 کے اوپر یہی آیت ہے، لیکن من قبلی کا نہیں ہے. اور واضح طور پہ دونوں جگہ مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے. یہاں پر بھی دیکھیں اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے. اب یہ ہے کمی کی مثال، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ والا قاعدہ، وہ قاعدہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ قاعدہ مرزا قادیانی نے یہ دیکھ، یہ والا کہ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، ملحد ہو جاتا ہے. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 170 ازالہ اوہام حصہ اول. سمجھ رہے ہیں؟ چلیں بھائی. جی مفتی صاحب یہ جو کمی کی بات ہے یہی قبل کا سورہ الحج کی آیت نمبر 52، یہ جلد 1 صفحہ نمبر 629 کے اوپر بھی انہوں نے ایسے ہی کیا. جو ازالہ اوہام قدیم نسخہ ہے اس کے اندر قبل کا لفظ موجود نہیں ہے، لیکن جو نیا ایڈیشن ہے پھر انہوں نے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 439 کے اوپر دوبارہ اس کو اس کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے. ہاں جی. اچھا یہ جو آئینہ کمالات اسلام کا حوالہ دیا ہے نا، یہ آپ کو یہ کتاب ملے گی جو لوریوں کی ویب سائٹ ہے نا، یہ دیکھیں، تصویر ذرا بڑی کرنا یار. یہ لوریوں کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو ملے گی، یہ اوریجنل نسخہ لوریوں کی ویب سائٹ سے یہ لیا گیا، جبکہ موجودہ آئینہ کمالات اسلام وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. موجودہ آئینہ یہ دیکھیں، اس کے اندر یہ من قبلی کا اضافہ انہوں نے کر دیے، اپنے مرزے کی ہی کتاب کو تبدیل کر دیے. یہ دیکھیں یہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 352 آئینہ کمالات اسلام. اب یہ دیکھیں یہ اپنے مرزے کی ہی کتابوں کو بدل رہے ہیں دن بدن، یہ دیکھ رہے ہیں.
आप भी देख रहे हो? जी सर, मुझे तो इनका पहले भी मेरे पास ये मौजूद है हवाले। अच्छा यार, मुझे साहिबान इजाज़त दें, बैठे हैं आप लोग, और अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारी इस छोटी सी कावश को कबूल फरमाए, और कोई कमी कुताही हो गई अल्लाह पाक मुआफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो ये जो तारीफ वाली बात मुफ्ती साहब ने की है, मैं आप भाइयों से ये बता दूँ कि एक दो दिन हुए हैं, तो एक बहन ने जो कि कादियानी थी, वो जमात अहमदिया से तल्लक रखती थी, तो उन्होंने मुझे कहीं पे सुना कि मैंने इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।